کردار محبت اور عظمت۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے آسیہ رزاقی نے۔ اوائل مارچ کی نرم دھوپ کھڑکی کے شیشوں سے اندر جھانک رہی، کمرے میں گلابی پردوں کے پیچھے سے چھن چھن کر آنے والی روشنی نے شفق سی کھول دی تھی۔ سامیہ ڈائجسٹ میں گم تھی۔ نازیہ ایک فائل کھولے غور سے مصروف فرا کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھی نٹنگ کر رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا بن کر گود میں سویٹر پھیلا کر دیکھتی، مایوسی سے ہونٹ سکیڑتی اور پھر نٹنگ کرنے لگتی۔ سامیہ نے پھٹ سے رسالہ بند کیا اور بڑبڑائی، پتہ نہیں کہ بے تحاشا حسن، ہوش گم کرنے والی خوبصورتی کہاں پائی جاتی ہے۔ ان محترمہ کی تو ہیروئن، خواہ وہ جھگیوں میں ہی رہتی ہو یا کوٹھیوں میں، حسن و جمال کا مرقع ہوتی ہے، اور ہیرو ڈیشنگ ہینڈسم، اونچے پورے نیلی اور سبز یا بھوری آنکھوں والے ہوتے ہیں، جن کی آواز بھی دلکش ہوتی ہے۔ اف، یہ عام لڑکے لڑکیوں کے بارے میں کیوں نہیں لکھ سکتی؟ کیا محبت صرف حسن و جمال میں یکتا لوگوں کا حق ہے؟ ہم جیسے لوگ محبت نہیں کر سکتے اور پھر ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کو کوئی کام نہیں، بس سازشوں کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں۔ اللہ معافی۔ اوفو، تم پڑھتی کیوں ہو یہ فضول افسانے؟ کئی دفعہ سمجھایا ہے میں نے کہ فارغ وقت میں کوئی کام کر لیا کرو، سلائی کر لو، نٹنگ کرو۔ فرا نے کہا، سلائی سے دلچسپی نہیں اور نٹنگ سے بھی کیا حاصل؟ کرنا ہے تو کوئی ایسا کام کرے جو مالی مونت تو ہو۔ سامیہ نے کہا، ایک تو اتنی مشکل اردو بولتی ہو کہ لغت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ڈائجسٹ پڑھا کرو۔ ایک ٹکٹ میں دو مزے، اردو بھی بہتر ہوگی اور افسانوں ناولوں سے دنیا کا حال بھی معلوم ہوگا، لوگوں کی فطرتوں سے آگاہی، اور ہائے کیا مزے کے مکالمے، کیسی سازشیں، چلاکیاں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ ہائے چلاکیاں، کیا افسانے چلاکیاں بھی سکھاتے ہیں؟ فرح حیرت زدہ تھی۔ سلائیاں سائیڈ میں رکھ کر وہ سامیہ کو بغور سن رہی تھی۔ سبھی کچھ ہوتا ہے، رومانس، شادی، لڑائیاں، ساس بہو کے جھگڑے، نند بھاوج کی تلخیاں، دیور بھابھی کی شرارتیں، مذاق، شادیاں اور ناکامیاں، اور محبوب کے ڈائلاگ۔ سامیہ چٹخارے لے کر بولی، توبہ، 12 مسالے کی چاٹ! یاد کیسے رہتا ہے کہ کون سازشی ہے اور کس سے جنگ، کون ظالم کون مظلوم؟ یاد رکھنا پڑتا ہے، ورنہ دلچسپی کیسے ہو؟ اور کبھی یاد نہ رہے تو دوبارہ نظر ڈال لو۔ فضول میں دماغ کو تھکانا۔ فرح بیزار ہو گئی، اس نے اپنی نٹنگ سنبھال لی۔ سامیہ نے ڈائجسٹ پھر سے کھول لیا۔ لو جی، یہ بیچاری ہیروئن تو چائے بناتے بناتے ہی خرچ ہو جائے گی۔ سامیہ نے نئے افسانے پر تبصرہ شروع کیا۔ بھائی ہے تو، محبوب ہے تو، سہیلی ہے تو، اماں الگ، بس چائے بنا دو، چائے لاؤ، یہی 2 صفوں میں ہو رہا ہے۔ توبہ، کون بنائے گا چائے؟ نازیہ اپنی مصروفیت سے سر اٹھا کر بولی، خان سامہ۔ فرح نے منہ بنایا، ہے کس کا خان سامہ؟ کون سا خان سامہ؟ نازیہ پریشان ہو گئی، تم ہی پوچھ رہی ہو کون بنائے گا چائے، تو ظاہر ہے مذکر استعمال کیا ہے تو وہ خان سامہ ہی ہوگا۔ سامیہ نے تشریح کی، اور لو، اب یہ دیکھو کہ چائے بناتے ہوئے بیچاری جھلس بھی گئی، چہرہ بھی خراب ہو گیا۔ اف، محبوب بھی کنارہ کش ہو گیا۔ ہاں، کیا زندگی ہے۔ مسلسل کامنٹری جاری تھی۔ چلو، اب مایوس ہو کر جاب کر لی بیچاری نے۔ اچھا ہی ہے، بھابھیوں کی باتیں کب تک سن۔ کچھ دیر بعد پھر، قسمت والی ہے، ادھڑ عمر باس مہربان ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، پیسہ تو ہے اس کے پاس، شادی ہو گئی تو محتاجی تو نہیں ہوگی کسی کی۔ کیا شادی نہیں ہوئی؟ فرح نے سلائی بدلتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ پتا نہیں، اگلی قسط میں پتا چلے گا۔ اس کا مطلب ہے دھوکے باز ہے، شادی نہیں کرے گا، شادی شدہ ہوگا، بچوں والا یا بیوی بیمار ہوگی۔ ارے، سامیہ چونک گئی، تم تو بالکل انہی ناولوں والا انجام پیش کر رہی ہو۔ اب اگلا شمارہ لوں گی تو نتیجہ سامنے آئے گا۔ کمال ہے،
मैं पढ़े बगैर बता रही हूँ, तुम खरीद कर नतीजा मालूम करोगी। अरे हाँ, नाज़िया तुम बताओ। सामिया यकदम नाज़िया से मुखातिब हुई। तुम्हारा चिड़चिड़ा बॉस कुछ मेहरबान हुआ कि नहीं? वो मुझ पर क्यों मेहरबान होगा? नाज़िया चिल्ला गई। अज़ली बैर है मुझसे। वो मारा। सामिया ने डाइजेस्ट तकिए पर दे मारा। ये हुई ना बात। पहले पहलना मेहरबान, फिर कुछ अरसे बाद उसी निकम्मी फजूल लड़की से इश्क हो जाता है। उसके बाद शादी। इश्क वो किसी से नहीं कर सकती। और क्या वहां मैं अकेली लड़की हूँ? ऐसी ऐसी हसीन लड़कियां हैं, उन पर भी मेहरबान नहीं। गुस्सा जलाल रोब। अच्छा, हसीन लड़कियां भी हैं। सच कहूँ, बेतहाशा हुस्न और बेमिसाल खूबसूरती की मालिक। मैंने ये कब कहा है? नाजिया चिल्ला गई। बस अच्छी हैं, मुझसे बेहतर। ओहो! अच्छा, खैर मगर हम बेतहाशा हुस्न कहाँ तलाश करें? सवाल ये है। हुस्न तो देखने वालों की नज़र में होता है। फरहा ने स्वेटर बुनते-बुनते कहा और हाथ बढ़ाकर डाइजेस्ट उठा लिया। तुमको हुस्न की तलाश क्यों है? हमें तो नेक लोगों की तलाश होना चाहिए, ताकि अगले जहां में उनका साथ हो। हाँ, सुना है, नेक लोगों को नेक बीवियां और बुरे लोगों को बुरी बीवियां। अच्छी लड़की को नेक और बुरी को बुरा शौहर। अगले जहां का पता नहीं। मर्दों के लिए हूरें हैं, औरतों को पता नहीं क्या मिलेगा। उनको उनकी नेकियों का सिला जन्नत की शक्ल में मिलेगा। फरहा ने दिलासा दिया। वाह! हम नेकी भी करें और अल्लाह के घर जाकर लंडूरे रहें। ये कैसा इंसाफ है? मर्दों को हो रहे तो हमें भी। सामिया कह रही थी। क्या पता, अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम कैसी हो। खैर, हम इतने बुरे नहीं कि सिले में कुछ ना मिले। दुनिया में भी मिलना चाहिए और अगले जहां में भी। शायद सबको सिला मिलेगा। बाज बुरी फितरत के लोग होते हैं, उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। फरहा ने कहा। जैसे नाजिया की भाभी। वो नाजिया को पसंद नहीं करती और उसके लिए कोई अच्छी चीज भी पसंद नहीं करती। उन्हें हर अच्छी चीज से चिढ़ होती है। प्लीज फरा, मेरे बारे में कुछ भी कह लो, मेरे घर वालों को मौजूए गुफ्तगू ना बनाओ। नाजिया ने फाइल से सर उठाकर आजदगी से कहा। क्यों? तुम्हारे घर वाले मेरे भी कुछ लगते हैं, मगर तुम्हारी भाभी से मेरी खासी जंग भी हो जाती है, क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे साथ उनका रवैया और सुलूक, तुमसे नफरत बिला वजह। चलो हटाओ। सामिया ने बात खत्म करना चाही। गीबत भी अच्छी चीज नहीं। मैं तो भाभी के मुंह पर इससे ज्यादा कह देती हूँ। पूछ लो नाजी से। अच्छा खैर चलो, नीचे चलते हैं। खाला जान की खुशामद करके कुछ चाय पाली का बंदोबस्त करें। फरा उठी तो सामिया भी खड़ी हो गई। नाजिया यूं ही बैठी रही। वो अफसरदा थी। भाभी की बदसलूकी, उसके साथ जालमाना सलूक, उस पर इल्जामात की बौछार, वो क्या कुछ ना करती थी। मगर नाजिया ने कभी भाई से ही शिकायत नहीं की, तो और किससे करती? फराही जब उनके घर जाती, भाभी से लड़ लेती उसकी हिमायत में, ये जाने बगैर कि उसके जाने के बाद भाभी नाजिया के साथ क्या करेंगी। कोई भी अगर नाजिया के हक में दो कलमे कह दे, भाभी उसके खिलाफ और नाजिया की मजीद दुश्मन हो जाती। ना जाने क्यों, वो तो उन्हें शिकायत का मौका देना नहीं चाहती थी, मगर कहीं न कहीं वो खुद उसकी कोताही को कुरैद कर निकाल लेती और उस पर नसीहतों की बौछार शुरू हो जाती। बल्कि अब तो मारपीट भी करने लगी और वो मज़ीद खौफज़दा रहने लगी। वो दोनों कमरे से बाहर आ गई। जीने पर खालाजान की बुलंद आवाज़ बाखूबी सुनाई दे रही थी। वो फ़ोन पर किसी का मज़ाक उड़ा रही। ये उनका दिल पसंद मशगला था। आधा घंटा फ़ोन पर मसरूफ़ रहना और किसी न किसी को मज़ाक का निशाना बना। कितनी तेज़ आवाज़ है, ऊपर तक कितनी साफ़ आ रही है। फ़ोन सुनने वाली की कानों के पर्दे सलामत रहे। कहाँ से ये पाटदार आवाज़ निकालती है? सामिया नीचे उतरते हुए कह रही थी। जिनके बड़े दिहाने और मोटे होंठ होते हैं, उनकी आवाज़ पाटदार और बुलंद होती है। गौर करो, मशहूर गाने वालों की आवाज़ इसीलिए तेज़ होती है। फरहा ने तज्जिया पेश किया, मगर नूरजहां के होंठ तो पतले थे, मगर दहाना बड़ा, इसलिए तो आवाज़ पतली थी, पतले होंठों की वजह से। अच्छा चुप रहो, उनकी समात भी तेज़ है, कहीं सारी पाटदारी हम पर न बरस जाए। सामिया ने खबरदार किया मगर बेकार। कुछ न कुछ आवाज़ खालाजान तक पहुंच चुकी थी। उनके पहुंचते ही
क्लास लेनी शुरू कर दी। सलाम के जवाब में कमर पर हाथ रखकर बड़े स्टाइल से उन्होंने कहा, मोटे होठों बड़े दिखाने वालों को क्या होता है? बताना ज़रा। अरे! खालाजान ने बात सुन ली। फरा मुँह पर हाथ रखकर हँसी और सामिया को देखा। हम तो ये बात कर रहे थे कि गाने वालों के होंठ मोटे और दिहाना बड़ा होता है और आवाज़ पाटदार होती है। अगर खालाजान के होंठ ज़रा से और मोटे होते, तो वो भी इतना अच्छा गा सकती थीं। अब भी कोशिश करें तो ऐसे सुर निकलेंगे कि आजकल की गाने वालियाँ पानी भरती नज़र आएँगी। दाँत तल्ब नज़रों से उसने सामिया को देखा और तायद के लिए इशारा भी किया। जी हाँ, बल्कि हम नूरजहाँ की बात कर रहे थे कि उसके होंठ पतले मगर दिहाना बड़ा था, इसीलिए आवाज़ बारीक थी। मगर खालाजान की आवाज़ पाटदार है, वो सब गाने वालियों पर हावी हो जाती है। खालाजान, आपने कभी ट्राई किया? यानी अपनी आवाज़ इस्तेमाल की? गाने वगैरह तो गाए होंगे। फरा मासूमियत से कह रही थी। खालाजान शर्मा गई। हाँ, शादी से पहले मैं खूब गाती थी। स्टोर में बंद होकर फिर खानदान की शादियों में भी मुझे बुलावा आता। सब कहते थे रौनक लगा देती हो। मगर अब्बा को मेरा गाना पसंद नहीं था। कहते थे किस कदर बेसुरा हलक फाड़ती हो। पड़ोसी समझेंगे कोई भेड़िया घुस आया है। कहकर वो हंस दी। अरे! आपके वालिद बेचारे पुराने ज़माने के थे ना। उन्हें आप बताती फ़नूने लतीफ़ा की दुनिया में ऐसी आवाज़ की किस कदर माँग है। आप तो शोबिज़ में तहलका मचा सकती थीं। ये वालिद बेचारे पुराने ज़माने के थे ना। उन्हें आप बताती फ़नूने लतीफ़ा की दुनिया में ऐसी आवाज़ की किस कदर माँग है। आप तो शोबिज़ में तहलका मचा सकती थीं। वो बेचारे-बेचारे नहीं थे। खालाजान जोश में आ गई। बड़े दबंग और ज़बरदस्त। एक हों करते तो घर भर को साँप सूंघ जाता। चाय टाइम पर ना मिले तो धाड़ें, खाना ना मिले तो चिंगाड़ें। उफ़ मेरी तौबा! साँप के डसने से मर गए, वरना तो उनके मरने का भी इरादा ना था। बड़े तनोतोष के मालिक थे। फराह ने उन्हें बगौर देखा। यकीनन वो खालाजान के अब्बाजान ही होंगे। तनोतोष! हाय! शुक्र है कि वो इस ज़माने में नहीं है, वरना मेरा साँस रुक जाता। उनकी धाड़ों-चिंगाड़ों से फराह ने कानों को हाथ लगाकर तौबा की। उफ़! मेरा तो सुनकर ही साँस उखड़ रहा है। सामिया क्यों पीछे रहती? हाय! चाय पीने को दिल चाह रहा है। शायद उससे कुछ दिल ठहरे। खालाजान, बना दूँ चाय? खालाजान ने मुलाज़मा को चाय का ऑर्डर दिया और इस दौरान वो अपनी कारकर्दगी का बयान करती रही। कब किस मौके पर क्या गाया और किस-किस से दाद वसूल की। चाय आई तो पहले नाज़िया को भेजी गई। फाइलों में सर खपा-खपा कर उसने दर्द कर लिया है। लगी हुई है बेचारी। रात तक उसका काम कंप्लीट ना हुआ तो बॉस की झाड़ पड़ेगी। ऐसी कि मरी हुई नानी दोबारा याद आ जाएंगी। दोबारा कैसे? खालाजान मासूमियत से पूछने लगी। पहले भी कई दफा झाड़ पड़ चुकी है, तब भी उसे नानी याद आ गई थी। फरा ने प्याली में चम्मचा चलाते हुए बताया। खालाजान, उसका बॉस पूरा कसाई है, जरा सी गलती को भी नहीं बख्शता। अभी उसे काम आता ही कहाँ है। मैं तो चाहती हूँ किसी और जगह उसको काम मिल जाए, मगर नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। नाज़ी घर पर फाइलें ले आती है। उसकी कोलीग मिस मारिया उसे काम समझा देती हैं। शुक्र है कि वो उस पर मेहरबान है। नाज़ी को तो हर रोज़ सर्विस के चले जाने का धड़का रहता है। फरा बढ़ा चढ़ाकर उसकी बेचारगी का बयान कर रही थी। खालाजान को अफ़सोस हो रहा था। हाय! किस कदर तो मासूम और सीधी-सी है। बस इसीलिए घर और दफ्तर हर जगह मार खाती है। मार खाती है? मगर कौन मारता है? खालाजान की आँखें फैल गईं। मेरा मतलब है दोनों जगह उसे दबाया जाता है। कुछ बोलती जो नहीं। भाभी ने तो ऐसा हशर किया था कि बस, और बाकी कसर उसका बॉस पूरी कर रहा है। खालाजान ने मुलाज़मा को चाय का ऑर्डर दिया और इस दौरान वो अपनी कारकर्दगी का बयान करती रही। कब किस मौके पर क्या गाया और किस-किस से दाद वसूल की। चाय आई तो पहले नाज़िया को भेजी गई। फाइलों में सर खपा-खपा कर उसने दर्द कर लिया है। लगी हुई है बेचारी। रात तक उसका काम कंप्लीट ना हुआ तो बॉस की झाड़ पड़ेगी। ऐसी कि मरी हुई नानी दोबारा याद आ जाएंगी। दोबारा कैसे? खालाजान मासूमियत से पूछने लगी। पहले भी कई दफा झाड़ पड़ चुकी है।
तब भी उसे नानी याद आ गई थी। फरा ने प्याली में चमचा चलाते हुए बताया, खालाजान, उसका बॉस पूरा कसाई है, जरा सी गलती को भी नहीं बख्शता। अभी उसे काम आता ही कहाँ है। मैं तो चाहती हूँ किसी और जगह उसको काम मिल जाए, मगर नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। नाज़ी घर पर फाइल ले आती है, उसकी कोलीग मिस मारिया उसे काम समझा देती है। शुक्र है कि वो उस पर मेहरबान है। नाज़ी को तो हर रोज सर्विस के चले जाने का धड़का रहता है। फरा बढ़ा चढ़ाकर उसकी कारकर्दगी का बयान कर रही थी। खाला जान को अफसोस हो रहा था। हाय, किस कदर तो मासूम और सीधी है। बस इसीलिए घर और दफ्तर हर जगह मार खाती है। मार खाती है? मगर कौन मारता है? खालाजान की आंखें फैल गईं। मेरा मतलब है कि दोनों जगह उसे दबाया जाता है। कुछ बोलती जो नहीं। भाभी ने तो ऐसा हशर किया था कि बस, और बाकी कसर उसका बॉस पूरी कर रहा है। और बाकी कसर उसका बॉस पूरी कर रहा है। फोन की घंटी सुनते ही खालाजान सरस से खड़ी हो गई। उनके जाते ही फरा ने निम्को और बिस्किटों पर हाथ साफ करना शुरू किया। सामिया उसकी फुर्तियां देखकर हैरान हो रही। खालाजान, अब किसी को नाजिया की मासूमियत और उसकी भाभी के मुजालिम की फहरिस्त सुना रही थी। सामिया उठकर ऊपर आ गई, जहां खालाजान की आवाज पहुंच रही थी। कमरे का बंद दरवाजा देखकर उसने शुक्र अदा किया। नाजिया सुन लेती तो बुरा मानती। वो अपने घर के हालात डिस्कस करना पसंद नहीं करती थी। फरा चूंकि उसकी चचाजाद बहन थी और दोस्ती भी बहुत थी उनमें, वो भाभी की ज्यादतियां खुल्लम खुल्ला हर किसी को बता देती। फरा की वजह से ही नाजिया को खालाजान के घर जगह मिली थी। फरा वहां पहले से थी। उसकी मंगनी हो चुकी थी। उसका मंगेतर आबिद अमेरिका में जॉब करता था और खूब कमा रहा था। चंद माह बाद उनकी शादी होने वाली थी। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसे दस्तकारी का शौक था। निटिंग और कशीदाकारी के अलावा क्रोशिया का काम भी आता था उसे। वो फारिग वक्त में खाली बैठना पसंद नहीं करती थी। उसने अपने जहेज के लिए भी बेशुमार चीजें बना ली थी। फरा के वालदैन खालाजान के पुराने पड़ोसी और दोस्त थे, बल्कि खालाजान किसी रिश्ते से फरा की अम्मी की बहन भी थी। पड़ोसी होने की वजह से उनके ताल्लुकात सगे रिश्तेदारों से ज्यादा थे। इसीलिए फरा खालाजान के यहाँ रहती थी। वो उनकी पेइंग गेस्ट थी। फरा के वालदैन से नाजिया के भाई की सर्द जंग चल रही थी, भाभी की वजह से। मगर फरा उनके घर दंदनाती हुई पहुंच जाती। उसी ने नाजिया को जॉब पर उकसाया था। नाजिया के भाई चूंकि खालाजान से वाकिफ थे, उन्हें ऐतराज ना हुआ। सोचा कि फरा जो नाजिया के बहाने हर दफा घर आकर उनकी बीवी की बेइज्जती करती है, इस बहाने इससे निजात मिलेगी। वो के पहले पहल यही कहा कि लोग क्या कहेंगे, एक बहन का खर्चा ना उठा सके तो खर्च ही तो बुनियाद है उस नन भावच फसाद की। शादी आप उसकी करेंगे नहीं, फिर आपकी बेगम को मुफ्त की नौकरानी कहाँ से मिलेगी। फरा धड़ल्ले से बोली। वो फरा से दबते थे, डरते भी थे, जो हर बात उनके सामने कहकर उन्हें शर्मिंदा कर देती। फरा का साथ होगा खालाजान की निगरानी, तहफ़्फ़ुज़ होगा, कमा कर लाएगी, जहेज बनाएगी और खर्च कम होने पर उनकी बेगम को भी सुख मिलेगा। आजकल के लड़के जॉब करने वाली बीवी चाहते हैं। अगर किसी को ऐतराज़ हुआ तो मुलाज़मत छोड़ी जा सकती है। ये सब अकल की बातें उनकी बेगम ने उसकी समात में उंडेली थी। वो तो थे ही हुक्म के गुलाम। इस तरह नाज़िया फरा के साथ आ गई और उसे एक ऑफिस में जॉब मिल गई। अरे भई, मेरे माली का क्या पूछती हो? खालाजान फ़ोन पर मसरूफ़ थी। कमबख़्त कारकर्दगी में भंगी की नस्ल से है। बस लॉन में झाड़ू अच्छी लगा लेता है और कुछ नहीं आता। पनीरी लगाता है तो उसमें फूल ही नहीं आते। मैंने बैंगन टमाटर की पेंड्री से लगवाई, यकीन करो एक फूल तक ना आया। कमबख्त के हाथ बांझ हैं। अरे नहीं, बन्नो क्या पूछती हो? उन्होंने जोरदार कहकहा के साथ कहा। खुद तो 8 बच्चों का बाप है, निगोड़ा, मगर उसके लगाए बीजों और पेंड्री में फल फूल नहीं उगते। उसके बच्चों पर तरस आ जाता है, इसीलिए निकालती नहीं। आए दिन नई नौकरी की तलाश करता फिरता है। अच्छा, मैं भेजूंगी उसे तुम्हारे लॉन में झाड़ू लगाने के लिए। ठट्टा लगाकर फोन बंद कर दिया। इस दौरान फराह बिस्किट और निम्को प्लेटों से उठाकर जार में रख चुकी थी। उन्हें दिखाकर अलमारी में रखे और ऊपर आ गई। और सामिया ने हैरत से देखा। वो एक प्याले में बिस्किट और निम्को ले आई थी।
और नाज़िया से इसरार कर रही थी। खाओ ना यार। सामिया ने होंठ सुकेड़े। फरा, ये क्या? चोरी है ये तो। उसे इल्म था, खालाजान इतनी भी कुशादा दिल ना थी। जी नहीं, इस पर हमारा भी हक है। क्या हम खाने की कीमत नहीं देते? और मेरी अम्मा जो हर दफा तोहफे तहाइफ के नाम से हलवे वगैरह भेजा करती हैं, तो सामिया चुप हो गई। चूंकि खाला वो फरा की थी और वो हर चक्कर में उनके लिए तहाइफ लाया करती थी। ये भी सच था। सामिया तो फरा की दोस्त थी। पहले वो एक सस्ते से हॉस्टल में रहती थी। फरा ने ही उसे खालाजान के बारे में बताया और उसे जगह दिलाई। अरसे से लड़कियों को ऊपर के कमरे में किराए पर रखती थी। चूंकि तनहा थी, उन्हें बातें करने के लिए चंद लोगों की जरूरत रहती थी। जब से उन्हें सरदारा मिली थी, जो खाना पकाने में ताक और बहुत फुर्तीली थी, तब से पेइंग गेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह का नाश्ता और रात के खाने का खासा चार्ज करती थी। कमरे का कुछ नहीं लेती थी। एक जहाजी डबल बेड था, जिस पर वो तीनों सो जाती थी। अलमारियों में खासी गुंजाइश थी। बाथरूम साथ ही था। शाम की चाय वो अमूमन ऊपर ही बनाती थी, कभी नीचे आ जाती थी। शाम को तो खाला जान चाय की पेशकश कर देती। उनके दो बेटे अमेरिका में थे। माँ और उसके मसाइल से बेनियाज। एक बेटी थी जो कराची में थी। उसकी फराह से दोस्ती थी। बचपन उसका साथ गुजरा था। वो माँ को फोन करती तो फराह से भी बात करती थी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। खाला जान उसके सलीके और खुश मिजाजी के किस्से सुनाती थी। फराह भी उसके सलीके की मद्दाह थी। एक दिन फराह ने बताया कि निदा का फोन आया था। मुझसे अपने देवर की बहुत तारीफ कर रही थी। उसके लिए किसी अच्छी लड़की का पूछ रही थी, क्योंकि वो खुद ससुराल में पॉपुलर है। उसकी उसका मियाँ और देवर चाहते हैं कि निदा अपनी पसंद की देवरानी लाए। मैंने तो भाई तुम दोनों का जिक्र कर दिया। वो आने वाली है और मुझे यकीन है वो तुम दोनों को पसंद कर लेगी। बात सुनते ही सामिया उछल पड़ी। है? क्या कह रही हो फरा? क्या वो एक साथ दो से शादियां करेगी? सामिया बोली। नाजिया का रंग उड़ गया। वो बेजारगी से फरा को देखे जा रही थी। ये क्या चक्कर चला रही है फरा? भाभी तो उसका हशर नशर कर देंगी। भाई भी बदजन हो जाएंगे। वो फरा को देखी गई, कुछ बोल ना सकी। लो, इन साहिबा का चेहरा मुलाहिजा करो। रंग जर्द, आंखें फटी फटी। सामिया, ये तो तुम्हारे अफसानों की हीरोइन का हुलिया लग रहा है। तुम कहती हो अफसानों नावलों में जो होता है वो आम जिंदगी में नहीं मिलता। अब इस हीरोइन को देख लो। तो तुमने बात ही ऐसी की है। सामिया होठ सुकेड़कर नाराजी से बोली। अरे बहना, कुछ आइंदा के बारे में भी सोचो। मुस्तकबिल के लिए पहले से प्रोग्राम बना लेना चाहिए। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो ऐश करोगी जिंदगी भर। बड़े अमीर कबीर लोग हैं। शॉपिंग के लिए इंग्लैंड जाती है निदा। आया समझ में? और निदा को इख्तियार दिया हुआ है कि जिसे पसंद करे उसे अंगूठी पहना दे। क्या समझी? अब तुम दोनों का काम है निदा को मुतासिर करने का। मीठी जबान और खुश मिजाजी से काम लो। मगर हमारी इस कजन की तो शक्ल पर अभी से 12 बज रहे हैं। निदा के आने तक तो 2 बज जाएंगे। जब निदा ही पसंद ना करेगी तो देवर तो भला क्या? तुम तुम फरा। नाजिया की आवाज कांप रही थी। हाँ क्या? दुश्मन हूं ना तुम्हारी। चलो यूं ही सही। फिर मैं सामिया का करा दूं। तुम रहना भाभी की गुलामी में। ताने और गालियां सुनती रहना, मार खाती रहना और उनके रिश्तेदार से शादी करवा कर उन्हीं की चाकरी करना। फरा को भी गुस्सा आ गया था। तुम्हें रिश्ता कराने का शौक क्यों हो रहा है? सामिया को हंसी आ रही थी। मेरा जो हो चुका है, वरना मैं ऐसे रिश्ते को भला छोड़ती? जी जान से निदा के आगे बिछ जाती। मगर तुम लोगों की हालत जार देखकर मैं सोचती हूँ, तुम भी खुशहाल जिंदगी गुजारो। और अगर ये लड़की अपने एमडी को खुश करे तो क्या ही बात है। मैंने तो उसे एक बार ही देखा है। सच्ची, मैं तो दिल पकड़कर हाय करके रह गई। मगर फिर बेचारे आबिद का ख्याल आ गया, जो दयारे गैर में मेरी यादों को सीने से लगाए शादी का इंतजार कर रहा है। नाजिया के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। सामिया हंसने लगी। तुम सामिया, कर लोगी निदा के देवर से शादी? हैं? बगैर देखे या वो मुझे देखे, मैं उन्हें परखूं, तभी कुछ फैसला करूंगी। जिंदगी भर का मामला है। और फिर मेरी अम्मा जिंदा मौजूद, बड़ी बहन सलामत। मैं भला कैसे फैसला कर सकती हूँ? ओफो यार, बाज दफा जिंदगी के फैसले भी यूं ही अचानक हो जाते हैं। फरा ने फलसफा झाड़ा। और मैं खूबसूरत भी नहीं कि कोई देखे और पसंद करे। सामिया का लहजा धीमा सा था।
अगर सब खूबसूरती ही देखते तो मामूली लड़कियां घर बैठी रह जाती। फराह ने उसको दिलासा दिया। क्या यार, तुमको खामखा का एहसास है। अच्छी भली हो तुम, मगर अफसाने पढ़कर तुम हसीन सूरतें तलाश करती हो। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ। सामिया संजीदगी से बोली। मैं जानती हूँ, दौलतमंदों की नजरें भी दूसरी होती हैं। मैं उनकी पसंद नहीं हो सकती, ये तो निदा के आने पर ही पता चलेगा। मगर मैंने तुम्हारा जिक्र कर दिया है। मुझे तो तुम भी किसी नॉवल की हीरोइन लगती हो। सामिया फराह को देखते हुए बोली। हर किसी की हमदर्द, मुखलिस और मददगार। सच फराह, अब मुझे कभी कभी कहीं ना कहीं हीरोइन से मुशायबा लड़की नजर आ जाती है। लोगों की जिंदगियां भी डाइजेस्ट की कहानियों जैसी होती हैं। वही दुख, मसाइल, परेशानी, धोखा, फरेब, मोहब्बत और शादी। आम जिंदगी में होता यही सब कुछ है ना। तो लिखने वाले जिंदगी से ही प्लॉट चुनते हैं। आस-पास के लोगों की फ़िक्रें, परेशानियाँ, उलझनें, यही सब होता है। कभी रोमांस और कभी शादी हो जाती है। फराह ने निटिंग सँभाल ली। सामिया ने डाइजेस्ट उठा लिया। फराह को एम्ब्रॉयडरी का भी शौक था, निटिंग का भी। सामिया ने अपने स्वेटर का ऑर्डर दिया हुआ था, जबकि फराह पहले नाज़िया का स्वेटर बुनना चाहती थी, अगली सर्दियाँ शुरू होने से पहले। इस सर्दी में उसके पास कोई स्वेटर ना था। शॉल से ही काम चला लिया। उसकी शॉल पर भी कढ़ाई करना थी। सामिया के उसके इरादे का पता चला तो उसने कहा, नाज़िया को शौक ही कहाँ है, वो तो बिल्कुल सादा रहती है। हाँ, ये इसके हालात का तकाज़ा है, मगर मैं शादी से पहले इसको बहुत लाजवाब तोहफ़े देना चाहती हूँ। कुछ दिन तो याद करेगी मुझे, कुछ दिन। क्या कमाल करती हो फराह, सामिया ने कहा। मैं तो कम से कम ज़िंदगी भर तुमको ना भुला सकूँगी। अगर तुम तोहफ़ा दोगी, उसे जान से लगा कर रखूँगी। सामिया इंतहाई खुलूस से बोली। फराह की पलकें नम हो गईं। उसने सामिया को गले लगा लिया और खुलूस लहजे में शुक्रिया भी अदा किया। नाज़िया चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती थी। उसे बातें करने का ढंग भी न था। ऑफिस में भी उसकी शोहरत अच्छी न थी। वो निकम्मी, सुस्त और देर से ऑफिस पहुंचने वाली मशहूर थी। अभी उस दिन एमडी साहब ने उसे जरा सी गलती पर ठीक ठाक झाड़ पिलाई। उन्हें किसी की इज्जत नफ्स का जरा ख्याल न था। गुस्से में मिस फारिहा के सामने ही वो उसकी गलतियां गिनवाने लगे। जो काम आपके जिम्मे है, मुझे मजबूरन वो दूसरों से करवाने पड़ते हैं। आपको अगर दिलचस्पी नहीं तो घर बैठे आराम करें। मुझे बकवास करने पर मजबूर ना करें। मिस फारिहा, प्लीज आप अपनी सीट पर जाएं। नाजिया दुख और एहसास शर्मिंदगी में सर झुकाए खड़ी थी। नजर तक ना उठा सकी कि मिस फारिहा की शक्ल देखती। मुस्कुराते लब अचानक वापसी के ऑर्डर पर कैसे नागवारी से सिकुड़ गए थे। बॉस ने शायद मिस फारिहा की नाराजगी नोट की थी। बोले, आखिर आप गलती करके दूसरों को खुश करने का मौका क्यों देती हैं? आप मुझे बताएं, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? मिस नाजिया, आपसे कह रहा हूँ। मुझे मालूम होना चाहिए, आप हर रोज लेट क्यों हो जाती हैं और आने के बाद भी काम में आपका दिल नहीं लगता। तो सॉरी सर, मैं कल से टाइम पर आ जाऊंगी। आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आवाज गले में फंस गई। सर ने आराम से कहा, ठीक है, लेकिन बेहतर था आप अपना मसला मुझे बता देते। अच्छा, जाइए और तवज्जो से ध्यान लगाकर काम कीजिए। उसका रुका हुआ सांस बेहाल हो गया। वो तेजी से कमरे से निकलकर अपनी सीट पर गिर गई। मिस फारिहा ने बगौर उसे देखा। क्या बहुत डांट पड़ी है? बड़ी मासूम बनकर पूछ रही थी। वो आंसू पीते हुए फाइलें दुरुस्त करने लगी। देखो, तुम्हें कितना कम काम मिलता है और मुझे सुबह से शाम तक कितनी दौड़ लगाना पड़ती है। हम अगर सही काम नहीं करेंगे, डांट तो पड़ेगी। कंपनी का नुकसान मालिक लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने क्या नुकसान कर दिया? जरा सी देर आने में हो गई, डाक जा चुकी थी बस। तो वो खत कल जा सकता था। देर से खत जाने से नुकसान हो जाया करता है। और जब एमडी साहब ने पहुंचने में देर नहीं करते, तो मुलाजमों की गफलत क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये गफलत नहीं, मजबूरी है। नाजिया अफसरदगी से बोली। दो बसें बदलकर अगर एमडी साहब आए तो उनको पता चले कि देर कैसे हो जाती है। बसें हमारी गुलाम नहीं होती। मैं तो 3 बसें बदल कर आती हूँ। मारिया ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मेरे 2 बच्चे हैं
एक अदद नकचिढ़ा ख़ाविंद है। नाश्ते में ज़रा-सी देर भी बर्दाश्त नहीं उन्हें। बच्चों को लेकर पहले अम्मा के पास आती हूँ। मियाँ का ऑफ़िस देर का है। वो घर पर होते हैं और मैं एक बच्चे को गोद में दूसरे की उँगली पकड़े काँधे पर उनका बैग अटकाए बसों के पीछे भाग रही होती हूँ। रोना आ जाता है कभी तो, अपनी बेबसी और हालत ज़ार पर। बच्चे मियाँ के सुपुर्द करो, वो तुम्हारी अम्मा के हाथ छोड़ आएँ, फ़ारिहा ने कहा। ओहो! मेरा काम और वो करें? तौबा जी! अपना भी हर काम मुझसे कराते हैं। उनके ख़्याल में जॉब मेरा शौक है। हालाँकि मेरी तनख्वाह भी घर में ही खर्च होती है, मगर अब इस वीकेंड पर बहन को बुला लिया है। उसके 4 बच्चे हैं, पूरा दिन मुझे फिरकी की तरह घूमना पड़ेगा। खाना, चाय, रात का खाना, ज़रा-सी कमी रह जाए तो नंद का मुँह फूल जाता है। और मियाँ साहब के ताने, तंज़ के तीर, जो मेरी ज़िंदगी का असासा बनकर मुझसे चिमट जाएँगे। नाज़िया दम साधे उनकी बातें सुनती रही। मारिया के ज़िम्मे तो काम ऑफ़िस में भी ज़्यादा था। एमडी को उस पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वो काम में माहिर थी और ख़ासी पुरानी थी, उसका शौहर बेहिस और खुदगर्ज़। अब मुझे खाने पकाने की फ़िक्र हो गई। 2 वक़्त का खाना आला किस्म का, चाय के साथ भी लवाज़मात होने चाहिए। छोड़ो तुम, फ़ारिहा ने कहा। तैयार नाश्ता मिल जाता है, बल्कि खाना भी। तुम्हारे घर के नज़दीक जो रेस्टोरेंट है, वहाँ मिल जाता है। नाश्ते के लिए हलवा पूरी, आलू की तरकारी और छोले मज़ेदार मिलते हैं। मँगा लेना। लो जी, मैं किससे मँगाऊँ? मियाँ से? हुँ, ऑर्डर दे देना। वो खुद सुबह सवेरे नाश्ता पहुँचा देंगे। खाने में जो भी सालन कबाब दरकार हो, वो भी 1:30 बजे तक पहुँच जाएगा। मैं तो पुरानी गाहक हूँ, फ़ोन पर ऑर्डर दे देती हूँ, कोई मेहमान आ जाए तो मुझे परेशानी नहीं होती। फ़ारिहा समझा रही थी। मारिया उलझ रही थी। मियाँ को पता चल गया तो जान को आ जाएंगे। उन्होंने फ़िक्रमंदी से कहा, अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं वहाँ से खाना लेकर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। अगर तुम्हारे मियाँ ने देखा तो कह दूँगी कि मैं लाई हूँ पकाकर, आपकी बेगम की मदद के लिए। कैसा? मिस फ़ारिहा फ़ख्रिया अंदाज़ में मारिया को देखने लगी। मारिया ने बगौर फ़ारिहा को देखा। फ़ारिहा, मरवाना देना। कमाल है, इसमें बुराई क्या है? जब खर्चा तुमको करना है तो हाथ पैर और जिस्म की तकलीफ देना क्या ज़रूरी है? तुमको आराम मिलेगा, पका-पकाया खाना पहुँचेगा। बहुत महँगा भी नहीं, जो लड़का खाना लाएगा उससे 10-15 रुपए दे देना। तुम्हारी सहूलत के बता रही हूँ। हाँ खैर, शुक्रिया भई, ट्राई करती हूँ। दरअसल हमारे घर में होटलों के खाने का रिवाज नहीं। मारिया अब भी हिचकिचा रही थी। नाज़िया फाइलों में सर देकर बैठ गई। उसका ज़हन मारिया और उसके मसाइल में उलझ गया था। नकचिड़ा शौहर, बदमिजाज नंद, कम से कम अभी तक तो उसे ऐसे किसी मसले से साबका नहीं पड़ा था। यूं तो सताने रुलाने के लिए भाभी ही काफी थी। वो उनके सामने अपने ही घर में सहमी हुई रहती थी। कोई गलती हो जाए तो भाभी की जुबान और हाथों से निजात देने वाला कोई न था। कभी कोई रिश्तेदार उसकी हिमायत में बोल देता तो उसकी और भी शामत आती। उसमें तेजी चलाकी तो थी नहीं। यूं भी वो घर के कामों में खासी सुस्त थी। भाभी इससे भी चिढ़ती थी। वो जल्दी हाथ क्यों नहीं चलाती? और कभी भाभी के रिश्तेदार आ जाते और उस पर नज़र जमाते तो वो बेहद डिस्टर्ब हो जाती। खुसूसन जब भाभी का वो मोना पहलवान नुमा कज़न आकर उसे घूरता। हाथों से बर्तन फिसलने लगते, दुपट्टा दरवाजे के कुंडे या हैंडल में फंस जाता। चप्पल पैर से निकल जाती, उसे अपनी कमज़ोरी का इल्म था। इसीलिए वो मुस्तकिल खौफज़दा रहती। और जब उस पर भाभी खफ़ा होकर उसकी मुतवक्के ससुराल का ज़िक्र करती, वो और भी डर जाती। ससुराल वाले क्या कहेंगे कि भाभी ने क्या सिखाया? सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगेगा। मियाँ से रोज़ मार खाओगी, जब भी उसे वक़्त पर खाना ना मिला। कपड़े इस्त्री किए हुए ना मिले, सास को भी चाय ना मिली तो झाड़ पड़ेगी। चोटी पकड़कर घर से बाहर कर देंगी। निकम्मी लड़कियों का यही अंजाम होता है। नंदे दुहाई डालेंगी कि इस निकम्मी से काम नहीं होते, हम अपने भाई की दूसरी शादी करें। और इस आखिरी बात पर उसे तस्कीन होती कि चलो दूसरी के साथ मिलजुल कर काम कर लूं। फरा ने सुना तो गुस्से में सर पीट लिया। अरे बेवकूफ, वो दूसरी क्या तुम्हारी सहूलियत की आएगी? खुद को फिट क्यों नहीं रखती नाजो? कभी जवाब भी दे दिया करो। जवाब देना सीखो, एहतजाज करो, वरना ये दुनिया तुम्हें पैरों तले मसल देगी। नाजिया टुकुर टुकुर फरा को देखती रही। वो अपने ख्यालात से किसी को कायल नहीं कर सकती। उसे बोलना नहीं आता। वो एहतजाज तो कर ही नहीं सकती। खुसूसन अपनी सफाई पेश करने से आजिज़ व कासिर थी। इसीलिए
हर इल्ज़ाम खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लिया। फरा के पास आकर उसे काफ़ी सुकून मिला। न आग उगलती ज़बान, न शोला बरसाती नज़रें, ना किसी की गंदी निगाहों का खौफ। बस ऑफ़िस में ही उसकी जान निकलती रहती। खुसूसन एमडी साहब की सर्द निगाहें और सर्द आवाज़ खून तलब कर ले। मैडम मारिया उसे तसल्ली देती, एमडी इतने बुरे हैं नहीं, वो काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं करते। इस कंपनी को तरक्की देने में एमडी की मेहनत, काबिल जहानत और जद्दोजहद शामिल थी। दिल के बुरे नहीं है, मिस मारिया कहती, और वो चिढ़ जाती। दिल कौन देखता है? और मिस मारिया ने कैसे देख लिया? काम में दिल नहीं, दिमाग इस्तेमाल होता है। ना खुद आराम करते हैं, ना दूसरों को खाली बैठा देखना पसंद करते हैं। तेवरी चढ़ाकर कहते, आप खाली बैठी क्या कर रही हैं? मेरा ख्याल है मेरा कार्टून बना रही होंगी। आपके पास कोई काम नहीं तो घर जाएं। और इस आखिरी बात से वो खौफजदा हो जाती। और एक दिन तो उन्होंने उसे नाखुश होकर कह दिया कि वो कोई काम सीख नहीं सकती। अगर काम नहीं सीखती तो कंप्यूटर ट्रेनिंग ले ले। जाएं कंप्यूटर रूम में, वहां सिद्दीकी साहब आपको कुछ ना कुछ सिखा देंगे। पहले ही जाने कौन कौन से कामों की लिस्ट उसे थमाई हुई थी, ऊपर से कंप्यूटर ट्रेनिंग। उसने वहां से भागने में आफियत समझी। 2 दिन बुखार का बहाना करके घर में वक्त गुजारा। निदा आ गई बमा देवर की। बहुत हंसमुख और दिलचस्प लड़की थी। उसका देवर अहमर भी खलंडरा और दिलचस्प था। निदा शाम को आई। अहमर को उसका कोई दोस्त एयरपोर्ट से साथ ले गया। रात भर बातें करके निदा देर तक सोती रही। फरा जॉब पर जाने के लिए तैयार होकर निकली तो दरवाजे पर अहमर मिला। किससे मिलना है? फरा ने पूछा। आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने दांत निकाले। जी, आप कौन हैं? आप वही है ना जिसका ज़िक्र भाभी बहुत करती हैं, निदा भाभी। ओह! ये तो बहुत ही अच्छी बात, बल्कि नेक शगुन हो गया कि सुबह-सुबह आपसे मुलाकात। आप शायद निदा के देवर हैं। फराह ने उसकी तरतर ज़बान रोकने के लिए बोलना शुरू किया, मगर निदा तो अभी सो रही है। मगर आप तो जाग रही हैं। मैं जॉब पर जा रही हूँ। एक प्याली चाय तो पिला सकती। रात भर जाग कर अभी भाग निकला। उसके चेहरे पर थकान थी। फराह मुरव्वत में उसके लिए चाय बनाकर ले गई। नाज़िया और सामिया भी अपनी जॉब पर जाने के लिए नीचे उतर आईं, तो फराह अहमर के साथ मसरूफ़े गुफ्तगू थी। फराह ने दोनों का तारुफ कराया। अहमर ने पलकें झपक कर कहा, आप जा रही हैं, मैं भी सोऊंगा। वो वहीं सोफे पर लुढ़क गया। वो तीनों बाहर आ गई। सख्त बातूनी चिपकू शाह है मौसूफ। फराह ने तबसरा किया और साथ ही बस में सवार हो गई। 2 दिन बाद ऑफिस आई। खून जमा रहा था खौफ से। वही हुआ। सर ने उसका नोटिस लिया और 2 टोक अल्फाज में उसे कंप्यूटर रूम जाने का कहा। मरे मरे कदमों से वो कंप्यूटर रूम की तरफ गई। रास्ते में पियोन किसी से कह रहा था, सर का मूड बहुत खराब है। किस दिन खुशगवार मूड होता है उनका। कमरे में किनारे किनारे लगी मेजों पर कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, ना जाने क्या क्या लवाजमात थे। हर कुर्सी पर कोई बैठा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सबकी गर्दनें उसकी तरफ मुड़ गईं। उफ, ये मर्द इस कदर नादीदे क्यों होते हैं? हर लड़की पर नजर जमाना। उसने देखा, पूरे कमरे में वो वाहिद लड़की थी। सिद्दीकी साहब ने उसे आवाज दी तो वो उनकी तरफ बढ़ गई। सिद्दीकी साहब बुजुर्ग, सूरत शरीफ आदमी थे। वो उसे अक्सर एमडी के कमरे में नजर आते थे। उन्होंने उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कंप्यूटर सेट करने लगे। उसने दाएं बाएं बैठे मर्दों की नजरों की चुभन महसूस की। सिद्दीकी साहब की बताई हुई कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। उन्होंने खुद ही कह दिया, बेटा तुम छुट्टी के बाद आ जाना, तब मैं तुम्हें ठीक से बता दूंगा थोड़ा सा सबक। छुट्टी के बाद उसकी आंखें मामूल से ज्यादा खुल गईं। वो तो छुट्टी के बाद ऑफिस से निकलने वाली पहली फर्द होती थी। हुक्म हाकिम, वो अपनी सीट पे आ बैठी और फाइलों को नंबरवार रखने लगी। मारिया आई तो उस पर खफा हुई कि वो कहाँ सैर करती फिर रही है। वो उसे कोई काम समझाने 2 बार पहले भी आ चुकी थी। सैर, ये लफ्ज उसके नसीब में ना था, मगर वो चुप रही। सबकी बातें सुनने की पुरानी आदत थी। छुट्टी के बाद भागने के मूड में थी कि सिद्दीकी साहब उसे लेने आ गए। वो तो बहाना बनाकर टाल जाती, मगर कमरे से एमडी साहब आ रहे थे। वो सिद्दीकी साहब के हमरा चल दी। सिद्दीकी साहब के साथ उनका एक और शागिर्द भी था। वो दोनों को लेक्चर दे रहे थे।
मगर उसकी अकल तो घड़ी की सुइयों में अटकी हुई थी। बाहर वो आधा घंटा गुजार कर बाहर निकले तो सिद्दीकी साहब ने उसे घर पर छोड़ने की पेशकश की। उसने इनकार के साथ कदम बढ़ा दिए। बाहर बस स्टैंड मुसाफिरों से खाली था और सड़क बस से खाली। वो यहाँ से वहां तक अकेली थी। फिर एक गाड़ी उसके सामने रुकी। अगली सीट से सिद्दीकी साहब उतरे। आए बेटा, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं नहीं, आपको जहमत होगी सिद्दीकी साहब, प्लीज, मैं चली जाऊं। सिद्दीकी साहब पिछली सीट पर बैठने लगे। तब उसने देखा उनका शागिर्द भी पीछे बैठा था और स्टीयरिंग के सामने एमडी अजहर साहब बराजमान थे। वो 2 कदम पीछे हटी और गर्दन हिला हिलाकर इनकार करने लगी। फिर एमडी की वही सख्त और सर्द आवाज आई, सिद्दीकी साहब आगे आ जाइए। सिद्दीकी साहब फिर उतरे और उसके सामने से गुजरकर फ्रंट सीट पर बैठ गए। गाड़ी जन से गुजर गई। उफ! फिर उसने गलती कर दी। अब खैर नहीं। घर पहुंची तो फराह नंगी तलवार बनी खड़ी थी। अब आई हो, क्या मुसीबत आ गई थी? खून सूख गया मेरा फिक्र से। बता नहीं सकती थी कि कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है तुम पर। फोन पर फोन करती रही ऑफिस, मगर ऑपरेटर भी गायब था। जान निकल गई थी मेरी कि अब शाकिर भाई को क्या जवाब दूंगी। नाजिया सरासीमा और शर्मिंदा खड़ी थी। अपनी गलती थी, अगर खाला जान को ही बता देती देर से आने की वजह, और ऊपर से एमडी की नाराजगी। यकीनन वो सख्त खफा होंगे, उन्हें इंसल्ट महसूस हुई होगी। ये क्या कर दिया मैंने। फिर उसने फैसला कर लिया और फराह को बता भी दिया, मैं ये जॉब छोड़ देती। फिर उसने सर के नए ऑर्डर का बताया। मैं क्यों सीखूं कंप्यूटर, मुझे जरूरत है ना दिलचस्पी। हर वक्त डर डर कर खून सूखता रहता है मेरा। तुम तो किसी स्कूल में ही जॉब दिलवा दो, वही ठीक है मेरे लिए। हाँ, ये ठीक है। फरहा गुस्से में चिल्लाई। चंद मिनट पहले तक वो किस कदर फिक्रमंद और परेशान थी, अब इस नई तजवीज और ऐलान पर मुश्तइल हो गई। मैं तो यहाँ की वजीर आला हूँ जो तुम्हारी पसंद की जॉब दिलवा दूंगी। डर डर कर अपना खून तुम खुद सुखाती हो। मैंने क्या फरमाइश की है कि तुम डरना जरूर। अरे, जब इतनी हिम्मत नहीं थी तो अपने शहर से बाहर क्यों निकली? पड़ी रहती भाभी के कदमों में, वही अच्छा था तुम्हारे लिए। नाजिया के दिल पर चोट लगी। फराह का इश्तियाल उसके लिए नया था। आंखें आंसुओं से भर गईं। सामिया को तरस आ गया। फराह, ऐसे तो मत कहो। देखो, बेचारी किस कदर गमज़दा हो गई। उससे उसकी परेशानी की वजह तो पूछो। आखिर यकायक कैसे फैसला कर लिया हुँ, परेशानी की वजह मैं क्यों पूछूं? मैं क्या इसकी माँ-बाप हूँ या गार्जियन हूँ? और बताना होता तो आते ही बता देती, मेरी परेशानी देखकर। मगर इसे मेरा ख्याल नहीं। कितनी फिक्रमंद रही हूं मैं, एक से बढ़कर एक बुरे ख्यालात आ रहे थे। एक तो नन्ही काकी को रास्तों का इल्म ही नहीं, अकल नाम की चीज पास नहीं, कोई भी अगवा करके ले जाए तो वापसी की तवक्को नहीं। स्कूल में नौकरी करेंगी। नाजिया बेचारगी से गोया हुई। फिर आखिर करूं क्या? बॉस मुझसे नाराज है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं। वो किसी दिन मुझे खुद निकाल देंगे। इससे बेहतर है मैं खुद छोड़ दूं। तो फिर तुम्हारा ठिकाना तुम्हारे भाई का घर होगा। तैयारी कर लो, मैं पहुंचा आऊंगी। वो बेहद नाराज थी। नाजिया को गहरे सदमे ने घेर लिया। कुछ समझ में नहीं आया फराह को कैसे राजी करे। फिर सामिया ने उसे इशारा किया कि वो फराह को मना ले। नाजिया अंदर जाकर लेट गई। उसे अपने फैसले में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। मेरी मर्जी, उसने हठधर्मी से सोचा। मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं, खाला जान मेरे लिए कोई जॉब तलाश कर ले। सोचकर मुतमईन हो गई। फराह ने फिर उससे इस मामले पर बात न की और नाजिया ने सुकून से वक्त गुजारा। कमरा अच्छी तरह साफ था। खाला जान के पास जाकर 2-4 डिश बना डाली, उनको चाय बनाकर पिलाई। वो खुश। निदा देवर के साथ कागान गई हुई थी। दरअसल उसका शौहर किसी काम से जर्मनी गया हुआ था। मौका गनीमत जानकर उसने सैरो तफरी का प्रोग्राम बना लिया। उसके लिए जो कपड़े खाला जान ने लेकर रखे थे, नाजिया ने झटपट उसकी शलवारें सी दी, कमीजें दर्जी को दे आई। खाला जान निहालो निहाल। फोन पर हर मिलने वाले से उसके सलीके की तारीफें की। वो खुश थी। ना कोई दबाव, ना झड़कियां, ना डांट। तीसरा दिन था जब खाला जान ने उसे पुकारा। उसके लिए फोन था ऑफिस। ऑफिस। वो हड़बड़ा गई। वो तो वो तो भूल जाना चाहती थी ये लफ्ज। डरते डरते रिसीवर उठाया और कान से लगाया। मारिया थी।
बिला वजह क्यों छुट्टियाँ कर रही हो तुम? वो भी इस पर बरस पड़ी। कितना काम रुका हुआ है। तुम्हारी टेबल फाइलों से भर गई है। आखिर सोचा क्या है तुमने? मैं ये सर्विस छोड़ रही हूँ। उसने कहकर रिसीवर रख दिया। अगले लम्हे फिर उसका फोन आ गया। नाजिया, सोचकर कदम उठाना चाहिए। इससे बेहतर सर्विस तुमको कहीं नहीं मिलेगी। अपनी गलतियों का शुमार भी कर लेना और नुकसान का अंदाजा भी कर लेना। फोन बंद हो गया। खालाजान के पूछने पर दबी आवाज से उसने बताया, मैं सर्विस छोड़ रही हूँ। ये मेरी मर्जी की नहीं है। दूर उफक पर हल्की सी रोशनी की लकीर उम्मीद और आस की खुशखबरी दे रही थी। नमाज अदा करके खुशू खुजू से दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, आज का दिन मेरे लिए, मेरी जिंदगी की सुबह का सबसे ज्यादा मुबारक दिन हो। आज जो सूरज मशरिक से सर उभारे, उसकी किरणों में मेरी खुशी और खुशकिस्मती की चमक हो। ऐ अल्लाह, मुझे तेरा ही सहारा चाहिए। बस तू ही है मेरा मददगार। ऐ अल्लाह, ना जाने कितनी दुआएं उसके दिल से जुबान तक आईं। फिर दिल यकदम इत्मीनान से भर गया। उसने चाय बनाकर पी, नहाकर कपड़े तब्दील किए और जब फरा और सामिया जागी, वो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अब सोच रही थी कहाँ से जद्दोजहद का आगाज करूं। अखबार नीचे आकर अखबार फेंक कर गया था। लपकते हुए नीचे गई और अखबार ऊपर ले आई। टेरेस पर बैठकर उसने इश्तिहार देखने शुरू किए। किसी स्कूल वाले को उसकी जरूरत नहीं। ये कैसे मुमकिन है? क्या अल्लाह तक मेरी दुआएं अभी नहीं पहुंची? नीचे से खालाजान उसे पुकार रही थी। शायद उन्हें अखबार चाहिए। वो नीचे आई तो उन्होंने ड्राइंग रूम में तलब कर लिया। और अगर वो जानती वहां उसकी मौत का समा है तो सोती बन जाती, कहीं छुप जाती। आओ बेटा नाज़ी, अंदर आ जाओ। कोई गैर नहीं है, मेरे जेठ का बेटा है। 1 साल पहले मिलने आया था, या आज फुर्सत मिली है आने की। बैठो, मैं सरदारा से चाय का कहकर आती हूँ। ओहो, वो तो आज छुट्टी पर है। बेटा नाज़ी, तुम ज़हमत करोगी? नहीं चची जान, तकलीफ ना करें। मैं ऑफिस में पी लूँगा चाय। सर कह रहे थे। वाह! मेरे घर सुबह-सुबह आए हो। चाय के बगैर जाने दूँगी भला? नाज़ी किचन की तरफ दौड़ गई। क्या करूं? चाय में नमक डाल दूं या कहीं से नींद की गोली मिल जाती, सब सो जाते। उसने किसी फिल्म में देखा था, मगर वो आराम से चाय बनाकर ले आई। तुम भी तो अपना कप ले आओ, खालाजान ने याद दिलाया। उसे उसे बताना पड़ा कि सुबह वो ऊपर चाय बनाकर पी चुकी है। चची जान, मुझे जल्दी है, वरना मैं कुछ देर बैठता। सर चाय एकदम खत्म करके खड़े हो गए। मैं मिस नाजिया की खैरियत पूछने आया था। ऑफिस में काम बहुत जमा हो गया है। मैं मिस नाजिया को साथ ले जाता हूँ। मेरे ख्याल से ये बीमार तो नहीं है। चलिए। उनका अंदाज खासा तहकुम लिए हुए था। वो जो घबराई हुई थी, मजीद गड़बड़ा गई। ये लड़की कहती क्यों नहीं कि तनख्वाह कम और काम ज्यादा? इतनी मेहनत के बाद थकी हारी 2 बसें बदल कर आती है। ये तो सर्विस छोड़ने को तैयार थी। मैंने समझाया है, देख लो, तैयार है बिल्कुल। चलिए, देर ना हो जाए। संजीदगी से कहकर वो आगे बढ़ गए। खालाजान ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और सरगोशी में बोली, मैंने कह दिया है, अब तनख्वाह बढ़ा देगा। वो मुर्दा कदमों से बाहर निकली। वो स्टेयरिंग संभाले उसके मुंतजिर थे। खालाजान पीछे पीछे आ गई थी। खुदा हाफिज कहते हुए वो उनसे बोली, बहुत मासूम सी है, ज्यादा डांटा ना करो, डर जाती है। इसकी भाभी बहुत जालिम है। अच्छा, फिर कब आओगे? जी, बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा। अम्मी को लेकर आऊंगा। वो कनाडा से आ जाए तो। ऑफिस तो जैसे लम्हों में ही सामने आ गया। कहाँ तो वो घंटा भर में पहुंचती थी। गाड़ी रुकते ही वो उजलत में उतर कर डरते हुए अंदर दाखिल हुई। मारिया और फारिहा दोनों आ चुकी थी। आज टाइम पर पहुंच गई। फारिहा ने कदरे मुस्कुरा कर कहा, लगता है घर से दौड़ती आ रही हो। मुंह कैसा सुर्ख हो रहा है। मारिया हंस पड़ी। मारिया हंस पड़ी। फिर तो आधी रात को उठकर चल पड़ी होगी नाजिया। क्यों मिस नाजिया, ठीक कह रही हूं ना? इतनी जल्दी थी ऑफिस पहुंचने की। फारिहा ने शायद तंजन कहा। फिर वो सर हिला के बुलाने पर
پھر وہ سر کے بلانے پر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی نازیہ نے ماریا سے پوچھا، آپ نے سر کو میرے گھر کا پتہ بتایا تھا؟ میں نے صرف فون نمبر دیا تھا، کیا ہوا؟ ہماری لینڈ لارڈ سر کی رشتے دار ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولی، اوہ یہ بات ہے، پھر وہ تم کو لے کر آ گئے؟ چلو اچھا ہوا، اب میں تمہاری کچھ مدد کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی تمہیں کمپیوٹر روم میں ٹائم لگ جائے۔ فارحہ ابھی واپس نہیں آئی تھی کہ نازیہ کا بلاوا آ گیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب مس فارحہ کے سامنے اس کی کلاس لی جائے گی۔ جانا تو تھا۔ وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑی سوچتی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ اب جو ہو سو ہو، سر فون پر مصروف تھے۔ فارحہ کھڑی تھی، اس کا موڈ آف۔ پھر سر نے فون رکھ کر مس فارحہ کو کچھ ہدایات دے کر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جاتے ہی اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ ہچکچا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نازیہ پلیز، آپ بیٹھیں آرام سے، مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے ڈرتی کیوں ہیں؟ میرا رویہ سب کے ساتھ یکساں ہوتا ہے، آپ بیٹھتی کیوں نہیں؟ اب ان کا لہجہ حکمیہ تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے پھر سے اڑ گئے۔ بیٹھنا ناگزیر ہو گیا۔ آپ کے خیال میں شیر بھیڑیا وغیرہ قسم کا درندہ ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو۔ یہ مس فارحہ ہیں، مس ماریا ہیں، مس ناہید۔ میں ان کو کچھ کہتا ہوں تو وہ ناگواری کا اظہار کر دیتی ہے۔ یہ ان کا حق ہے، مگر میں مگر میں ایسی نہیں ہوں سر۔ بے ساختگی سے اس نے کہا، پھر خود کو کوسنے لگی۔ کیا بکواس کی ہے میں نے، جیسے میں بڑی عارفہ و اعلیٰ چیز ہوں۔ اف، یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو باور کروا دوں۔ جس طرح آپ اس کمپنی کی کارکن ہیں، میں بھی ہوں۔ مجھے کمپنی کے مفاد کے لیے چاق و چوبند ورکر چاہیے۔ آپ کی طرف سے مجھے مسلسل شکایتیں ملتی ہیں، اسی لیے میں نے چاہا کہ آپ کمپیوٹر جوائن کر لیں، جو آئندہ بھی آپ کے کام آئے گا۔ سر مجھے اس سے بھی دلچسپی نہیں۔ آخر دل کڑا کر کے کہہ ہی دیا۔ سر نے انٹرکام پر 2 چائے کے کپ آرڈر دیے اور ایک بار پھر اس کا دل حلق میں آپ۔ یہ سائنس کی ترقی کا دور ہے۔ کمپیوٹر کی اہمیت کو نظر انداز کریں، آپ اپنا نقصان کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں دلچسپی لیں، کیونکہ اب آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ سر بولتے رہے۔ وہ سختی سے کرسی کا ہتھا تھامے بیٹھی رہی۔ چائے آ گئی۔ پیون کے جانے کے بعد انہوں نے اشارے سے اسے چائے بنانے کا کہا۔ سر، میں چائے نہیں پیتی۔ بھلا وہ ان کے سامنے نہ صرف پیتی ہیں، بلکہ آپ بہت اچھی چائے بناتی بھی ہیں۔ آخر آپ اتنی غلط بیانی کیوں کر رہی ہیں؟ شرمندہ کرنا سر کی عادت تھی، اور اس میں ان کو کمال حاصل تھا۔ چائے کے درمیان خاموشی کا وقفہ رہا۔ چائے ختم ہوئی، وقفہ بھی ختم ہو گیا۔ جائیے، صدیقی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور خود کو کمتر اناڑی یا نکما سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ بہت ہمت والی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ آفس ٹائم کے ساتھ ہی آپ کی چھٹی ہوگی۔ کام میں دل لگائیے، جائیے۔ بغداد دوڑنا چاہیے تھا، مگر وہ سست قدموں سے آئی۔ ماری اور فارحہ دونوں سے دیکھ کر مسکرائی۔ شاید وہ انہیں جوکر لگ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد صدیقی صاحب کو کمرے میں جاتے اور پھر انہیں نکلتے دیکھ کر جان سلب ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے لے کر کمپیوٹر سیکشن کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے صدیقی صاحب سے سوال کیا تھا، کیوں؟ آخر کیوں میں کمپیوٹر کی زبان سیکھوں؟ مجھے اس میں دلچسپی نہیں۔ میں سیکھ سکتی ہی نہیں تو یہ کہ سر کو آپ سے کام لینا ہے۔ یہاں کا ہر ورکر کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ابھی نہیں تو مستقبل میں۔ ویسے اب گھر گھر کمپیوٹر ہوتے ہیں۔ اس دن وہ گھر پہنچی تو بڑی اداس تھی۔ فرح گمسم، سامیہ چپ۔ نیچے سے چائے آئی تو سامیہ نے انکار کر دیا۔ نازی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ سامیہ نے فرح کی جانب اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر سامیہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ فرح کی منگنی ختم ہو گئی۔ کیا کیا کہہ رہی ہو سامیہ؟ لڑکے والے خود انکار کر گئے۔ مگر کیوں؟ کیسے؟ بس، منگنی پر تو کسی نے کچھ کہا نہ تھا۔ فرح کے والد نے اب مہر کا ذکر کر دیا۔ اس پر وہ اچھل پڑے اور کہا کہ مہر تو شرعی ہوتا ہے، وہی 32 روپے 8 آنے۔ اور لڑکے کی ماں نے فرح کی امی سے کہا کہ ہمیں جہیز میں کار کوٹھی چاہیے۔
ताकि हम बिरादरी वालों को दिखाएं कि गैरों में शादी करके हमें कितना फ़ायदा हुआ है। उन्होंने बेटे की कीमत लगाई और अब्बा ने मेहर की रकम पर झगड़ा किया। यानी लेना तो है, मगर देना नहीं। और मेहर तो शरई हक है औरत का। जितनी लड़के की आमदनी होगी उसकी हैसियत के मुताबिक ही मेहर मुकर्रर होना चाहिए। मगर वो 32 रुपए पर अड़ गए। सामिया तफसील बता रही थी और नाजिया तासुब और हैरत से दम बखुद थी। फरा सर झुकाए बैठी थी। शायद वो रोती रही थी। उसके चेहरे पर सदमे का तासुर था। नाजिया उसके कांधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देना चाहती थी। फरा ने अपना सर उसके कांधे पर रख। फरा, ऐसा क्यों हुआ? भला ये कोई शराफत है? उन लोगों की भी बेटियां हैं, उनके साथ भी अगर ऐसा हो जाए? तुम्हें किसने बताया? शायद गलत खबर उड़ाई हो किसी ने। मालूम तो करना चाहिए। वो घबराहट में बोल रही थी। अब्बा ने खुद खालाजान को बताया। फरा धीमी आवाज में बोली। खालाजान ने कहा कि मैं उन लोगों से बात करती हूँ, मुझे उनका नंबर दो। मैं बताऊंगी कि ज़कात की रकम महंगाई के साथ सोने चांदी के नरखों के मुताबिक बढ़ती है, और मेहर का भी यही उसूल है। जिस जमाने में लोगों ने 32 रुपए मेहर मुकर्रर किया था, उस जमाने में सोना भी 6-8 आने का तोला आता था। अब तो सोना क्या भाव है, हजारों रुपए तोला। के मुताबिक मेहर होना चाहिए, मगर अब्बा ने कहा रहने दे। ये जिंदगी भर के सौदे जबरदस्ती नहीं किए जाते। अब्बा ने ठीक ही कहा है नाजी। जिस घर में मेहर की रकम पर फसाद बर्पा हो सकता है, वहां मेरे साथ और कुछ भी हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर अल्लाह ताला ने मेरी मदद कर दी और मैं इंतहा पसंदों से बच गई। नाजिया ने हैरत से फरा को देखा। वो जो कल तक मंगनी की पाबंद थी, निदा से लड़ने को तैयार, आज वो किस आराम से शुक्र अदा कर रही थी। मगर फरा, वो लोग तो खासे मजहबी थे। अब्बा साहब जो थे, उनको शरई अहकाम का पास था। बेटियां हिजाब लेती थी, बेटे दाढ़ी रखते थे। ये सब दिखावे के मजहबी होते हैं। सामिया बोली। औरत का हक गज़ब करने में ऐसे लोगों का बड़ा हिस्सा है। ये जो खुद को मजहब का पाबंद कहते हैं ना, इनकी जड़ों में औरत के लिए नाइंसाफी, तहकीर और औरत के लिए कमतरी बैठी हुई है। अपनी बेटी किसी को देते हुए एक हक महर ही का मुतालबा होता है जो अल्लाह ने खुद मुकर्रर किया है। उससे भी पहलू तही करते हैं। और जब शादियों का मामला आता है तो शरा में चार जायज हैं के नारे लगाते हैं। ये है इन मौलवियों की दो रुखी पॉलिसी। सामिया कुछ ज्यादा ही मुतासिर थी। दरअसल उसकी बहन के साथ भी ऐसा हो चुका था। बहनोई ने मजहब की आड़ लेकर दूसरी शादी कर ली। मेहर माफ करा लिया था पहले ही, और उसकी बहन अब माँ के पास बच्चों को पाल रही थी। बच्चों का खर्च भी उसके शौहर ने नहीं दिया, और घर के हालात की वजह से ही सामिया जॉब कर रही थी। तुम आबिद से बात करो, शायद उन्हें इल्म ना हो। नाजिया को यकीन नहीं था कि ये सच हो सकता है। इतनी धूमधाम से मंगनी तहाइफ का तबादला हुआ था। आबिद का पूरा खानदान फराह के घर मंगनी करने आया था। खा पीकर शुक्रिया अदा करते हुए सब गए। ये अलग बात कि अपने घर बुलाकर ये गैर शरई रस्म करने से माजरत कर ली। मैं किसी से बात नहीं करूंगी। क्या बात करूं कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के दिल पे सुराख डाल दिए हैं। अब्बा ने मेहर की बात की थी, तोप से किसी को उड़ाया ना था। उन्होंने इस पर अब्बा की इस कदर इंसल्ट की, उन्हें जलील किया ये कहकर के आप बेटियों को शर्तों से ब्याते हैं। अरे, जो शख्स लाखों डॉलर कमा रहा है, खानदान को पाल रहा है, क्या उससे मेहर ना मांगा जाए तो क्यों? भूखा नंगा फकीर तो नहीं कि 32 रुपए 32 रुपए पर बेटी हवाले कर दी जाए। फराह को अपनी हद तक से ज्यादा अपने अब्बा की बेइज्जती का दुख था। मंगनी की शौहरत दूर दूर तक हो चुकी थी। अब उसके खत्म होने पर उसकी जात, उसकी शख्सियत गुफ्तगुए मरकज बनेगी। लोग उस पर इल्जाम रखेंगे, तंज करेंगे, अब्बा को मलामत करेंगे कि और करो गैरों में मंगनी। नाजिया चुपचाप फराह को देख रही थी। अब क्या होगा? ये सवाल गर्दिश में था और अभी इसका कोई जवाब न था। खालाजान बार बार फराह को समझाती, बेटा, जरा सा भी गम ना करना। वो लोग इस काबिल ही ना थे कि तुम जैसी काबिल, लायक, कीमती लड़की उनके घर जाती। ऐसे बदनीयत मुनाफिक लोगों से पीछा छूट जाने पर नफल अदा करो, शुक्राने की। खालाजान, लोग तो मुझे ही कहेंगे कि इसी में कोई खोट था, तभी मंगनी टूटी।
अंधों बहरों से क्या शिकवा, जिनको दिखाई देता है ना सुनाई देता है, वो कुछ भी कह सकता है। वरना सच तो यह है कि ढूंढने से भी कमी नजर नहीं आएगी तुम में। खालाजान, मुझे अपनी जात पर बड़ा फख्र था। मैंने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की, किसी का दिल दुखाया ना सताया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सबको इल्म था। अब अब्बा किस किस को जवाब देंगे, क्या बहाना करेंगे? आखिर मेरा कसूर तो कोई बताए। तुम्हारा कसूर है ना तुम्हारे बाप का। ये हमारे मुआशरे की खराबी है। लोग मुनाफिक भी हैं, मुतकब्बिर भी। दूसरे की इज्जत नफ्स को पामाल करने में फख्र महसूस करते हैं। उनका तकब्बुर बहुत जल्द उनके आगे आएगा। चलो, उठो नीचे चलो, सब मिलकर चाय पीते हैं। तुम्हारी अम्मा अब्बा को फोन करती हूँ। तुम भी उनसे बात करना और कहना कि तुम्हें कोई दुख नहीं। तुम मैशियत की रजा के आगे राजी हो। जो कुदरत चाहेगी वही होगा। खाला जान बहला फुसलाकर उसे नीचे ले गई। उसने अब्बा से भी बात कर ली मगर वो अफसुर्दा थे। अब्बा की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं उन अब्बा साहब को ना था। वो सोच रही थी कि अगर औरत को हर माह मेहर देने का हुक्म होता तो मर्द क्या करता। कभी देता, कभी बहाना करता। लेकिन जिंदगी में एक बार ये हक अदा करना इतना तो मुश्किल ना था कि एक लड़की को जिद और अना की भेंट चढ़ा दिया जाए, उसकी हस्ती को मसख कर दिया जाए। हर जगह शोहरत होने के बाद फिर से अकेला आसमान तले खड़ा कर दिया जाए कि मौसम की सख्ती बर्दाश्त करे। उसकी कोई जज्बाती वाबस्तगी तो ना थी कि वो रो रो कर फरियाद करती या खुशामद करती या आबिद की बेवफाई पर सोग मनाती। मगर अब्बा के दिल को जो तकलीफ पहुंची थी उसका उसे बहुत दुख था और वो उसका अजाला करना चाहती थी, मगर कैसे? फराह से ज्यादा रंज तो नाजिया को था। उसका ऑफिस में दिल ही ना लगा। घर आई तो निदा आ चुकी थी और घर में उसके बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। खुद निदा की चहचहाती आवाज खुशुल खान बुलबुल की चहकार से मुशाहिबा थी। घर में जो कल से उदासी थी वो आज ना थी। खाला जान भी बेटी को उसकी गैर मौजूदगी में होने वाले किस्से सुना रही थी। ऊपर आई तो फरा को कपड़े बकस में रखते देखा। ये क्या हो रहा है? पैकिंग, फरा ने बताया। मैं घर जा रही। फिर कब आओगी? शायद कभी नहीं। क्या? फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? वो अजहद परेशान हो गई। फरा लापरवाही से अपना काम करती रही। और तुम्हारी सर्विस का क्या होगा? छुट्टी मिल जाएगी? जॉब छोड़कर जा रही हूँ। फरा का लहजा धीमा था। फायदा ही क्या? अम्मा अब्बा के बगैर मैं अब नहीं रह सकती। मुझे अम्मा अब्बा याद आ रहे हैं। नाज़िया के माँ बाप ना थे जिनको याद करके वो सब कुछ छोड़कर चल पड़ती। खालाजान बहुत हमदर्द थी, मगर फरा के बगैर रहने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। क्या आज ही चली जाओगी? क्यों पूछ रही हो? फरा कुछ चौकन्ना हुई। मैं भी चलती तुम्हारे साथ, उसने आहिस्ता से कहा। और जॉब? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा। वक्त से पहले छोड़ने पर हर्जाना देना पड़ेगा। कम से कम 3 माह की तनख्वाह की मिसावी रकम होगी। नाजिया के पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही थी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फराह ने फिल किया था, उसने तो कुछ देखा ही नहीं कि इस सर्विस के शराइत क्या हैं। भाभी के सितम की शिकार वो इस कदर निढाल और थकी हुई थी कि फराह के इशारों पर अमल करती रही। फराह प्लीज, कुछ करो। वो रोने को थी। अच्छा ठहरो, कुछ सोचते हैं। फराह ने दिलासा दिया। सामिया नीचे से आई तो नाजिया के नाम एक खत था। भाभी की तहरीर देखते ही उसके हाथ कांपे। फराह ने लिफाफा खोल लिया। वाह भई! भाभी ने तुम्हारी शादी अपने उस पहलवान कज़न से तय कर दी है। पूछा है कि लंबी छुट्टी लेकर कब तक आ सकोगी, ताकि तारीख का मुतय्यन हो। मुलाज़मत छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उनका मोटा कज़न अचानक बेरोज़गार हो गया है, जो कि वो हमेशा से था। इसीलिए जॉब बरकरार रहे तो अच्छा है। फ़ोन पर जवाब देना और जल्द से जल्द छुट्टी लेकर आने को तैयार करो। लो जी नाज़ी, तुम तो गई काम से। अब वो मोटा गेंडा तोंदल तुम्हारे टुकड़ों पर पलने का तहैया कर चुका है और शायद वो भी यहीं आकर रहने लगेगा। हाय! फिर बेचारी सामिया का क्या होगा? होना क्या है, मैं भी इसी बेड के एक कोने पर पड़ी रहूंगी। सामिया हंसी। हाय हाय अस्तगफिरुल्लाह! बेहयाई का सफर, तौबा तौबा।
वो दोनों हँस रही थीं और नाज़िया के पैरों से जान निकली जा रही थी। फिर फराह नीचे चली गई। रात को वापस आई तो नाज़िया को रोता देखा। रोने से कोई मसला हल नहीं होता नाज़ी। अगर रिश्ता मंज़ूर नहीं तो साफ इनकार कर दो। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ। खाला जान निकाह करवा देंगी। ओफ़! फराह, ओफ़! फराह के बेधड़क फैसले। मुझे कौन पसंद करेगा? मेरे पास है ही क्या? कोई मुझे इस काबिल समझता ही नहीं। मैं भला ऐसी हूँ कि जो कि किसी को पसंद करूँ? नाज़िया रोती रही। तुम कहो तो निदा के देवर से तुम्हारा निकाह करवा दूँ? वैसे उसने मुझे पसंद किया था और निदा की ख्वाहिश भी है। अच्छा, तो क्या तुम राज़ी हो? भई, अच्छा भला तो है और फिर जान-पहचान। निदा से दोस्ती, इन पेंडुओं से तो अच्छी ससुराल है। क्या ख़्याल है? मगर तुम इतनी गमगीन थी, मैं समझी आबिद का ख़्याल आ रहा होगा। मेरा उससे कोई ताल्लुक तो ना था, रूहानी ना जज़्बाती। और जब माहौल में फ़र्क हो, नज़रियात मुख्तलिफ हों तो दूर से सलाम। फ़रा प्लीज़ कुछ करो। वो रोने को थी। अच्छा ठहरो कुछ सोचते हैं। फ़रा ने दिलासा दिया। सामिया नीचे से आई तो नाज़िया के नाम एक ख़त था। भाभी की तहरीर देखते ही उसके हाथ काँपे। फ़रा ने लिफ़ाफ़ा खोल लिया। वाह भई! भाभी ने तुम्हारी शादी अपने उस पहलवान कज़न से तय कर दी है। पूछा है कि लंबी छुट्टी लेकर कब तक आ सकोगी, ताकि तारीख का तयन हो। मुलाज़मत छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उनका मोटा कज़न अचानक बेरोज़गार हो गया है, जो कि वो हमेशा से था। इसीलिए जॉब बरकरार रहे तो अच्छा है। फ़ोन पर जवाब देना और जल्द से जल्द छुट्टी लेकर आने की तैयारी करो। लो जी नाज़ी, तुम तो गईं काम से। अब वो मोटा गेंडा तोंदल तुम्हारे टुकड़ों पर पलने का तहैया कर चुका है और शायद वो भी यहीं आकर रहने लगेगा। हाय! फिर बेचारी सामिया का क्या होगा? होना क्या है, मैं भी इसी बेड के एक कोने पर पड़ी रहूँगी। सामिया हँसी। हाय हाय अस्तग़फ़िरुल्लाह! बेहयाई का सफ़र, तौबा तौबा! वो दोनों हँस रही थीं और नाज़िया के पैरों से जान निकली जा रही थी। फिर फ़राह नीचे चली गई। रात को वापस आई तो नाज़िया को रोता देखा। रोने से कोई मसला हल नहीं होता नाज़ी। अगर रिश्ता मंज़ूर नहीं, तो साफ इनकार कर दो। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ। खाला जान निकाह करवा देंगी। उफ़! फ़रा के बेधड़क फैसले। मुझे कौन पसंद करेगा? मेरे पास है ही क्या? कोई मुझे इस काबिल समझता ही नहीं। मैं भला ऐसी हूँ, जो कि किसी को पसंद करूँ? नाज़िया रोती रही। तुम कहो तो निदा के देवर से तुम्हारा निकाह करवा दूँ? वैसे उसने मुझे पसंद किया था और निदा की ख्वाहिश भी है। अच्छा, तो क्या तुम राज़ी हो? भई, अच्छा भला तो है और फिर जान-पहचान। निदा से दोस्ती, इन पेंडुओं से तो अच्छी ससुराल है। क्या ख़्याल है? मगर तुम इतनी गमगीन थी, मैं समझी आबिद का ख़्याल आ रहा होगा। मेरा उससे कोई ताल्लुक तो ना था, रूहानी ना जज़्बाती। और जब माहौल में फ़र्क हो, नज़रियात मुख्तलिफ हों तो दूर से सलाम। फ़राह कितनी जल्द बदल गई, बहल गई। उसने ज़हन से आबिद के तसव्वुर को मिटा दिया। वो बहुत मज़बूत इरादों वाली लड़की है और नाज़िया, उसको हालात ने बुज़दिल, कमज़ोर और लाचार बना दिया था। देखो नाज़ी, मर्ज़ी के बगैर निकाह नाजायज़ होता है। भाभी के डर से ये गुनाह ना करना तुम। तुम इनकार लिखकर भाई को भेज दो। मगर कितनी ही लड़कियां माँ-बाप के ज़ोर देने पर मजबूरन निकाह कर लेती हैं, फिर पूरी ज़िंदगी गुज़ार देती हैं। मेरे ख़्याल से ये अमल जायज़ नहीं, लेकिन बहुत दफ़ा लड़कियां किसी मजबूरी के तहत माँ-बाप, ख़ानदान की इज़्ज़त की ख़ातिर ये जुआ खेलने पर राज़ी हो जाती हैं। फिर वो निकाह के वक़्त अगर सच्चे दिल से इकरार कर लें तो फिर कोई गुनाह नहीं। बाज़ औक़ात लड़कियां अपने लिए किसी और को मुंतख़ब करती हैं। माँ-बाप जो तजुर्बाकार होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी का बर तलाशते हैं। कम उम्री, नातजुर्बेकारी के फ़ैसले नापायदार होते हैं। तुम्हारे लिए भी तो ताया ने मुंतख़ब किया था। फिर हाँ, मगर वो गलत फ़ैसला था। तभी मैं आज़ाद हूँ। अल्लाह की मेहरबानी। तुम्हें जैसे बड़ा तजुर्बा है, नॉवल अफ़साने पढ़ती नहीं हो, फिर तुम्हें कैसे इल्म हुआ? अकल भी कुछ होती है, जिससे तुम महरूम हो। नाज़िया मुँह बनाकर रह गई। उसे कम अकल समझने वाले खुद बेअकल थे, वो वक़्त और हालात के आगे बेबस थे। भाभी ने अव्वल दिन से उसे अपना शिकार बना लिया था। वो इल्ज़ाम और बहतान से डरती थी। भाभी उसकी कमज़ोरी को जान गई थी।
उसे भाई की खफगी से भी डर आता था। उसका भाई के सिवा और था ही कौन? वो भी बदज़न हो गए तो दुनिया में उसका कोई खैर-ख्वाह ना था। ताया मोहब्बत भी करते थे और हमदर्द भी थे, मगर भाभी की बदज़ुबानी से डरते थे। उसने भाई के घर में भाभी की वजह से बड़ी अज़ियत रसां ज़िंदगी गुज़ारी थी। वो किसी मुजरिम की तरह सहमी हुई रहती थी। फरा की मेहरबानी, ताया की सिफ़ारिश पर वो यहाँ आई तो उसे ज़िंदगी की खूबसूरती का एहसास हुआ। मगर वो सहमने की आदी थी। ऑफ़िस में भी डरी हुई रहती। रात में भाभी का फ़ोन आ गया। रिसीवर हाथ में फिसला जा रहा था। भाभी की आवाज़ ख़ार की तरह समात में चुभ रही थी। हाँ, खत मिल गया। फिर क्या सोचा? कब आ रही हो? भाभी, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। डरते-डरते कह दिया। क्यों? छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती? शादी-ब्याह के लिए स्पेशल छुट्टी मिल जाती है। कह दो उनसे। भाभी, 1 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी तो मुश्किल है। आवाज़ गले में फँस रही थी। अरे वाह! क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रही है लड़की? कह क्यों नहीं देती कि वहाँ किसी से आँख मटक्का कर लिया है? मैं तुझे जानती नहीं क्या? अभी तेरे भाई को बताती हूँ क्या गुल खिला रही है वहाँ। वही तेरी खबर लेंगे। नाज़िया की आँखों से टिप-टिप आँसू गिरने लगे। रिसीवर गिरने लगा। खालाजान लपक आईं। उससे रिसीवर लेकर कान से लगाया। भाभी उसकी 7 पुश्तों को नवाज़ रही थीं। ये उनका सबसे पुरअसर हथियार था। तेरी माँ ऐसी थी, तेरी खाला वैसी और यहाँ नाज़िया हथियार फेंक देती। तुम जो कोई भी हो निहायत घटिया किरदार की हो। जो ज़बान तुम बोल रही हो वो किसी शरीफ़ज़ादी की नहीं होती। खालाजान अब शुरू हो गई थी। उन्हें रोकना कम से कम नाज़िया के बस में ना था। और आइंदा इस नंबर से तुमने बात की तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी ज़बान गुद्दी से खींच लूँगी। समझा क्या है तुमने? एक शरीफ मासूम बच्ची पर तोहमत लगाती हो। ज़लील औरत! लानत है तुम्हारे ऊपर। निहायत पुरजलाल कैफियत में फ़ोन रखकर खालाजान जैसे हाँफ गईं। फिर नाज़िया को रोता देखकर उसे समझाने लगी। अरे बकवास कर रही थी वो, मुझे भी गुस्सा आ गया। वो कर क्या सकती है? रिसीवर में बम तो रख नहीं सकती। नाज़िया पर तूफ़ान गिरिया का असर हो गया था। रो-रो कर साँस उखड़ने लगी। उसकी ज़ात पर बहतान लगाए होंगे, उसकी माँ पर। पूरे ख़ानदान को ज़लील करने के लिए क्या कुछ ना कहा होगा। वही सब जो वो उसे डराने-धमकाने के लिए कहा करती थी। अब खालाजान भी वाक़िफ़ हो गईं। खालाजान उसकी कोई न थीं, मगर उससे मोहब्बत का इज़हार कर रही थीं। यूँ तो कोई भी ज़रा-सी हमदर्दी करके उसके ज़ख्मों पर मरहम रख देता, तो उसे सुकून मिल जाता था। मगर आज खालाजान की ये हमदर्दी जानलेवा ना हो जाए। भाभी कुछ भी कर सकती थी। अभी आकर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाती, तो वो चुपचाप घिसटती हुई चली जाती। उसकी हिम्मत पामाल कर देती थी वो, उनकी बदज़ुबानी। आन की आन में फराह, सामिया, निदा उसके गिर्द जमा हो गईं। खालाजान उसे लिपटाए प्यार कर रही थीं। वो तीनों उसका हिसार बन गई थीं। मोहब्बत, प्यार, खुलूस और हमदर्दी उसके गिर्द चाँद का हाला बन गई। चाँदनी कितनी नर्म, ठंडी और खुशगवार थी। आज उसके दुखों का खात्मा हो गया था। अज़ियतों के काफ़िले, खौफ़ हिरास के लश्कर कहीं दूर जाकर नुक्ता बन गए। वो जो अकेली थी, बेबस थी। आज उसके साथ कितनी दुआएँ, कितनी ज़ुबानें, कितने वादे थे। अल्लाह की ताकत उसकी मुहाफ़िज़ है। मैं गुनहगार नहीं, ख़ताकार नहीं, फिर सज़ा क्यों मिले? और वो ग्रांडेल पहलवान, शराबी जुआरी निखट्टू, उसका नसीब क्यों? भाई को किस तरह भाभी ने राज़ी किया होगा? सोचते-सोचते नींद की गोद में उतर गई। सुकून, राहत, साहिल नज़दीक, उम्मीद, आस के जुगनू उसके गिर्द जगमगाते, मंडलाते उसको पुरसुकून करते रहे। फिर अहमद ने उसे जगा दिया। वो केक लेकर आया था। फराह ने चाय बनाई, खुशगवार फ़िज़ा में नाज़िया से केक कटवाया गया। तुम बड़े ख़राब हो। मेरी सालगिरह थी आज, निदा ने शिकवा किया। आज नहीं, कल आपकी सालगिरह मनाएंगे। आज की रात सिस्टर नाज़िया के नाम। सबने हुर्रे का नारा लगाया। फिर वो सब ऊपर आकर चांदनी का नज़ारा करने लगे। नाज़िया के सर में दर्द था। वो और सामिया लेट गई। अहमद नीचे चला गया। निदा फरा के साथ कमरे में आई। सामिया जाग रही थी। नाज़िया सो चुकी थी। निदा और फरा तासुफ से नाज़ी को देखने लगी। कितनी मासूम लग रही थी, मज़लूम। फरा ने निदा को
भाभी के जुल्म के दो चार किस्से सुनाए, फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, निदा, तुम नाजी से अहमर की शादी करवा दो। निदा ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। पागल तो नहीं हो गई हो? मैं पागल नहीं हूँ। यकीन करो निदा, भाभी बहुत निडर और बेधड़क औरत है। अगर वो आ गई तो नाजी उनके साथ चल पड़ेगी। बहुत कमजोर है ये, और वो इसे अपने कजन से ही ब्याह देंगी। हाँ, अगर कोई फौरी रिश्ता हो तो हम मुकाबले में पेश कर सकते हैं। शाकिर भाई तभी राजी होंगे, वो बीबी के गुलाम हैं। बहन की उन्हें परवाह नहीं है। फरा, अहमद ने तुमको पसंद कर लिया है, पहली बार मिलकर। फिर तुम्हारी मंगनी का सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गए, और अब वो किस कदर खुश हैं। उम्मीद होती है तो इंसान बहुत से महल खड़े कर लेता है। उनके महलों को मिस्मार करने का तुम्हें कोई हक नहीं। निदा खफा थी। मैं जानती हूँ, मगर अपनी जात से बढ़कर नाजिया का ख्याल है। मेरे पास मेरे माँ बाप हैं। नाजिया तन्हा है। फरा, तरस खाकर किसी के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अहमद तो ऐसी तजवीज सुनकर पागल हो जाएगा। तुम उस आदमी को रद्द कर रही हो जो पहली नजर में तुमसे मुतासिर हो गया था। मैं रद्द नहीं कर रही। नाजिया बहुत अकेली है। उसे एक मजबूत पनाहगाह की जरूरत है। प्लीज निदा, तुम अहमद को मना लो। फरा, तुम क्या हो? निदा के मुंह से बिछी हुई आवाज में निकला, तुम्हारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार हो रही है, और तुम उसे नजरअंदाज कर रही हो। एक हादसा अभी तुम्हारे साथ हो चुका है, और तुम दूसरे के लिए तैयार हो। निदा, हम एक बेबस, मजलूम और बेकसूर लड़की की जिंदगी को तबाही से बचाने के लिए ऐसा करेंगे तो हमारा दिल ज़मीर मुतमईन रहेगा। शायद तुम्हें कुदरत ने इसीलिए यहाँ भेजा हो। और अगर मैं कहूँ कि कुदरत ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, तुम हमारे घर के लिए आज़ाद हुई हो। मैं इतनी लाचार नहीं हूँ। मेरे लिए अम्मा अब्बा बेहतर सोच सकते हैं। वो मेरे मुस्तकबिल के लिए रास्ते तलाश कर लेंगे। निदा, मगर नाज़ी की बेहतरी के लिए कोई मदद को नहीं आएगा। मैं उसे भाभी के चुंगल से बचाना चाहती हूँ। वो बेहद मुंतकिम मिजाज औरत है। औलाद नहीं हो सकी, घर चचा जान ने नाज़िया के नाम कर दिया था। भाभी को इस बात का बहुत गुस्सा है। वो नाज़िया से हर तरह से बदसलूकी करके शायद उसे जान से मार देना चाहती हैं। सच, मुझे यकीन है। हालांकि वो नाज़िया है, बेज़ोर घर हासिल कर सकती है, मगर अब्बा उसके वकील हैं। इसलिए वो बस नफरत और इंतकाम का हर हरबा इस्तेमाल करती है। मेरी खातिर अहमद से बात करके देखो निदा, प्लीज, अल्लाह के वास्ते। फरा बहुत बेचैन थी। निदा परेशान हो गई। क्या तुम्हें अहमद पसंद नहीं? बहुत अच्छे हैं वो। नाजी मुझसे बहुत बेहतर है, मासूम और सीधी। मुझे यकीन है कि अहमद को मैं राजी कर सकूं। खैर, बात करूंगी। निदा ने लंबा सांस भरा और नीचे चली गई। सामिया, जो अभी थक चुप थी, फरा के पीछे पड़ गई। क्या कर रही हो तुम? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसे ही कहते हैं। और उन्हें नाजिया के मसले से क्या ताल्लुक? तुम अजीब दिमाग की हो। तुम्हें क्या बताऊं सामिया, बस मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। अगर मेरा कोई भाई होता, ये मामला तोल ना पकड़ता। सामिया, कैसे नक्शा खींचूं नाजिया का, जो भाभी के सामने होता है। घिघियाई हुई उनके इशारे पर दौड़ती है। ना ढंग के कपड़े होते हैं, ना जूते, और भाई को कुछ नजर नहीं आता। उन्हें वही नजर आता है जो भाभी दिखाती है, वही सुनाई देता है जो भाभी सुनाती है। पता नहीं मर्द ऐसे क्यों हो जाते हैं। और नाजिया, ये उनके सामने गूंगी बनी रहती है। आते वक्त भाई से जबरदस्ती रकम हथिया कर मैं इसके 3 जोड़े कपड़े और सैंडल वगैरह लाई। सामिया की नींद उड़ गई। वो हर तरफ अफसानों की हीरोइन तलाश करती थी। उसने गौर नहीं किया, अब उसके सामने दो दो हीरोइनें थी। दोनों हसीन भी थीं। एक मजलूमियत का नमूना, दूसरी इसार पेशा। मोहब्बत और खुलूस में गुंदी हुई ये दुनिया है, और यहाँ हर किस्म के नमूने मौजूद हैं। भाई जैसे जन मुरीद, भाभी जैसी जालिम, फरा जैसी इंसाफ पसंद। ना जाने और भी कैसे कैसे लोग दुनिया की रौनक बढ़ा रहे हैं। हम उनको देखते हैं, मगर जानते पहचानते नहीं। काश हम मजलूमों की मदद के लिए दिल वसी कर लें, हम अपने अमाल दुरुस्त कर लें।
ہم جاہل نادان لوگوں تک دین کا علم پہنچانے کا عزم کر لیں۔ تھوڑا سا ایثار، تھوڑی محبت، تھوڑا سا تعاون، ہر کسی کے لیے ضرورت مندوں میں بانٹ دیں۔ واہ! دنیا کتنی حسین ہو جائے، پھر دل خوش، ضمیر مطمئن، محبت ہی محبت۔ صبح بہت خوبصورت تھی، سامیہ کے لیے، نازیہ کے لیے کچھ اطمینان بھی۔ فرح جستجو اور اب کیا ہوگا کے جذبے کے ساتھ صبح کا نظارہ کر رہی تھی۔ ناشتہ انہوں نے سب کے ساتھ کیا۔ فرح بے چینی سے احمد کو دیکھتی، پھر نظر بچا کر ندا کی جانب متوجہ ہو جاتی۔ کہیں سے کوئی اشارہ نہ ملا، وہ مسترب سے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ سامیہ نے آج چھٹی کر لی تھی، وہ اس نئی کہانی کے انجام کے منتظر تھی۔ نازیہ تیار ہو کر آفس چلی گئی، فرح نے پیکنگ کھول دی، وہ بھی اسکول چلی گئی۔ نازیہ کو گھر میں جو سکون ملا تھا، آفس آتے ہی اس میں دراریں پڑنا شروع ہو گئی۔ اگر بھائی بھابھی آفس آ کر اسے ساتھ لے جانا چاہیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گی، رک نہیں سکے گی، کوئی اسے روکنے والا یہاں نہیں۔ ماریا نے اسے بغور دیکھا۔ کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، چہرہ بھی کچھ، شاید روتی رہی ہو۔ کیوں؟ میں کیوں روں گی بھلا؟ وہ بگڑ کر بولی اور ٹپ سے آنسو میز پر گرا۔ ماریا نے قلم میز پر رکھا، اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ ہاں۔ نازیہ کا ضبط رخصت ہو گیا۔ میری شادی طے ہو گئی ہے، بھابھی نے چھٹی لے کر آنے کا کہا ہے۔ ماریا اسے دیکھتی رہی، وہ خاصی ڈسٹرب تھی، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ شادی کس سے ہونی ہے؟ ایک ایک دیو سے، جو بھابھی کا کزن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آدمی سے اور کس سے شادی ہوتی ہے؟ وہ چلا پڑی۔ ماریا نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوئی نہ تھا، فارحہ بھی نہیں آئی، اور وہ تمہیں پسند نہیں، اسے کوئی دیونی ہی پسند کر سکتی ہے، بلکہ وہ بھی نہیں۔ خیر، زبردستی شادیوں کا دور اب نہیں رہا۔ ویسے چھٹی کتنے دن کی چاہیے؟ پتا نہیں، ماریا سمجھی نہیں یا مذاق کر رہی تھی۔ وہ پلکے جھپکے بغیر اسے گھورتی رہی، پھر اٹھ کر کمپیوٹر سیکشن کی جانب چل پڑی۔ کمرے میں دو چار لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ صدیقی صاحب نہیں تھے، نہ ان کا شاگرد، مگر اسے پریشانی نہیں ہوئی۔ بھلا اس کے مسئلے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کون اسے بھنور سے نکال سکتا ہے؟ جو کرنا ہے خود کرنا ہے، ہمت ہمت سے۔ وہ کرسی پر جم کر بیٹھ گئی اور کی بورڈ کی صفائی کرنے لگی۔ گو کہ اس کی ضرورت نہ تھی، پھر اس نے کمپیوٹر آن کر لیا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر چل پڑی تھیں، اسے مانیٹر اور پرنٹر کا استعمال آ گیا تھا۔ صدیقی صاحب نے دور سے اسے مصروف دیکھا اور گردن ہلا کر اطمینان کا اظہار کیا۔ یقیناً اس نے بہت جلد سیکھ لیا تھا، وہ بغیر کسی مدد کے کام کر رہی تھی۔ پھر کسی نے اس کے فون کا بتایا، وہ باہر گیلری میں آئی، ریسیور پکڑ کر کان سے لگایا۔ سامیہ تھی، بہت گھبرائی ہوئی۔ سنو نازی، تم گھر آنے میں جلدی نہ کرنا، وہ تمہارے بھائی بھابھی آئے ہوئے ہیں، خالہ جان کی ان سے جھڑپ ہو چکی ہے، وہ تمہارے آفس کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے فرح کو فون کر دیا ہے، آ گئی ہے وہ۔ دراصل وہ تمہیں آج ہی لے کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ چھپ جاؤ کہیں بھی، ہم انہیں روک رہے ہیں، مگر بھابھی بہت غصے میں ہے۔ اچھا۔ دھڑام، زمین پر گرنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگائی۔ ماریا، پیون، اکرم صاحب بھاگے بھاگے آئے۔ آفس میں ہلچل سی مچ گئی۔ رات میں کسی وقت اسے ہوش آیا۔ سامیہ اور فرح اس کے پاس تھیں، وہ پرائیویٹ کمرے میں تھی۔ فرح نے فوراً شکر کے نفل ادا کیے۔ سامیہ اسے گرم دودھ پلانے میں مصر تھی، فرح جوس لے آئی۔ وہ غائب دماغی سے ان کو دیکھتی رہی۔ آفس میں بے ہوش ہو گئی تھی تم؟ فرح نے بتایا۔ بے ہوش؟ وہ حیران ہو گئی۔ جب سارا سارا دن وہ گھر کے کاموں میں بیل کی طرح جتی ہوتی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھابھی اس کے فضول کام نکالتی، رات کو ٹھڈے مار کر اسے جگاتی اور سر پیر دباتی، مالش کرواتی، نیند کے جھونکے آتے تو بال پکڑ کر کھینچتی۔ گرم دوپہروں میں بھی وہ بھابھی کی بہن کے جہیز کے لحاف تھی، ڈورے ڈالتی، پسینے پسینے ہو کر ذرا کمر سیدھی کرنا چاہتی تو دور سے ہنگار
सुन कर फिर बैठ जाती। सर्द रातों में भाभी की 6 बहनों के दुपट्टों पर लेस लगाया करती, क्रोशिया के बेल बनाती। आराम के लिए उसे टाइम मिलता ना था। भाभी की 6 बहनों की शादियों का बेशतर काम उससे लिया जाता रहा। वो कभी बेहोश नहीं हुई। अब वो इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? निकाह का लफ्ज़ सुनते ही उस पर गुनूती सी तारी हुई। और फिर सुबह सवेरे मारिया उन तीनों के लिए नाश्ता लाई। मारे तशक्कुर के नाज़िया रोने लगी। मारिया का घर हॉस्पिटल के नज़दीक था, लेकिन फिर भी वो उसकी मशहूर थी। अल्लाह कितना मेहरबान है। मारिया ने ही घर पर उसकी बेहोशी और हॉस्पिटल दाखिल का बताया था। भाभी ने उसे मक्कार का नाम दिया। खालाजान शाकिर को साथ लेकर आई थी। भाभी को बहुत बुरा लगा, मगर शाकिर उसे बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखकर आबदीदा हो गया। आखिर भाई था। पिछली रात भी नाजिया दोस्तों हमदर्दों के हिसार में रही थी, और अब ये दूसरी रात भी फरा और सामिया उसकी खबरगीरी को मौजूद थी। अल्लाह कितना मेहरबान है। और वो खुद को अकेली मजलूम और लाचार समझती रही। और जब डॉक्टर ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी थी, उसी वक्त भाभी ने कमरे में झांका था। वो शाकिर के हमरा आई थी, और उनकी सूरत पर नजर पड़ते ही नाजिया के चेहरे पर जर्दी छा गई। और जूं ही भाभी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, उसने झटका सा लिया और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने तासुब से उसका मुआयना किया था। अभी तो बिल्कुल ठीक थी। फिर वो हैरान थे। एक बार फिर नर्सों ने उसको घेर लिया। भाई भाभी को फरहा ने कह सुनकर वापस भेजा। यूं लगता है जैसे उसकी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। फरहा ने तज्जिया पेश किया, जिस पर सामिया ने इकरार में गर्दन हिलाई। उसने कितने सितम सहे, मगर अब वो दिए हेकल पहलवान नुमा आदमी उसके जब्त का इम्तिहान बन गया था। होश में आकर वो रोती रही। तुम इनकार कर दो, एक बार हिम्मत तो करो। जब तुम खुद इनकार करोगी शाकिर भाई को तभी यकीन आएगा। फरहा समझा रही थी। घर आकर भी उसकी हालत ना संभली, मगर एक इत्मीनान था। ताया जो खालाजान के बुलावे पर आए थे, उसे भाभी से बचा लेंगे। फिर भी वो खौफजदा थी। खालाजान ने उसकी कमजोरी के पेश नजर अपने कमरे में उसका इंतजाम कर दिया। डॉक्टर तो छुट्टी देने पर तैयार न था, मगर अहमद डॉक्टर था। उसने उसका ख्याल रखने और ट्रीटमेंट देने की जिम्मेदारी ली तो वो घर आई। भाई भाभी रात को होटल में रहे, दिन में आ गए। भाभी तो उसे साथ ले जाने के लिए इसरार कर रही थी। खालाजान ने उन्हें डांट दिया। ताया ने कहा, ये मेरे साथ जाएगी। भाभी को अपनी जल्दबाजी का अफसोस था। आज की निकाह की तारीख गुजरी जा रही थी। लड़की मुकर किए बिस्तर पर पड़ी है। अब दूल्हा वालों को क्या जवाब देंगे? मगर उनकी एक ना चली, और रात को वो फिर होटल चले गए। इरादा जाहिर कर दिया कि निकाह मुलतवी करके 1 हफ्ते बाद शादी ही कर देंगे। नाजी को सुना दिया। वो फिर खौफजदा हो गई, मगर अब खालाजान और ताया उसके मुहाफिज थे। रात को खालाजान ने मीटिंग की, ताया को अहमद से मिलवाया और बाकायदा रिश्ता दिया। ताया बेहद ममनून हुए। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया। ये मेरी गलती थी कि मैंने फराह की मंगनी में कई चीज़ों को नज़रअंदाज किया। खानदान, माहौल, रस्मो रिवाज, मिजाज, आदात, किसी चीज़ के बारे में छानबीन नहीं की। बस तालीम याफ्ता और मजहबी ख्यालात का जानकर इकरार कर लिया। कम अज कम मंगनी की रस्म का फंक्शन ना हुआ होता तो मामला उछाला ना जाता। उन लोगों में मेहर मुकर्रर तो करते हैं, अदायगी का रिवाज नहीं। और इतनी कम रकम लेकर औरत करेगी क्या? बहरहाल एक अजियत से गुजर कर हमने खासा तजुर्बा हासिल कर लिया। बस भाई, ऐसे ही मजहब का नाम लेकर उसे बदनाम करने वाले औरत का हक गजब करते हैं। उसको वो मुकाम नहीं देते जिसकी वो मुस्तहिक है। अल्लाह ने तो औरत की इज्जत करने का हुक्म दिया है। ये लोग उसको बोलने की इजाजत नहीं देते। उन नाम निहाद मौलवियों से तो वो मजदूर बदर जिहा बेहतर है, जो दिन भर की मजदूरी बीवी के साथ रखता है। आपा, मैंने बहुत अजियत बर्दाश्त की है। मेरी बच्ची का नाम सबकी जुबान पर आया। लोग तहकीक के लिए आने लगे, बेकसूर होते हुए मैं शर्मिंदा होता रहा। मैं खौफजदा
हो जाता था कि ना जाने मेरी मासूम बच्ची की किस्मत कैसी है। लोग उसको मनहूस ना समझें, मगर मैंने अल्लाह से उसकी खुशकिस्मती की दुआ माँगता रहा। उसका करम। सुबह को फराह मुस्कुराती हुई नाज़िया को बताने आई कि उसका रिश्ता अब्बा ने मंज़ूर कर लिया है। निदा की छेड़छाड़ से उसको शर्माने का मौका भी मिल रहे थे। निदा ने शिकवा किया कि ताया मंगनी के खिलाफ है, मगर मैं अंगूठी तो ज़रूर पहनाऊंगी। घर के लोगों के दरमियान छोटा सा फंक्शन। निदा ने अहमर को ताकीद की कि वो नाज़िया को डबल डोज देकर इस काबिल कर दे कि वो फरा की इस खुशी के मौके पर जोशो खरोश से शरीक हो। इकलौती साली है उसकी, सेहत बहुत ज़रूरी है। और जब मुस्कुराते हुए अहमद ने उसकी आसीन ऊँची की इंजेक्शन लगाने के लिए, उस वक़्त मारिया और भाभी ने कमरे में कदम रखा। भाभी के तेवर होंश बिगड़े हुए थे। "कैसी हो नाज़िया?" मारिया मुस्कुराते हुए पूछ रही थी, जबकि अहमद उसकी रग तलाश कर रहा था। नाज़िया मुस्कुराकर मारिया को देखने लगी। तभी यकदम भाभी ने चीखना शुरू कर दिया। "अरे मैं कह रही हूँ ना कि ये मकर कर रही है। देख लो अपनी आँखों से शाकिर, क्या कहा था मैंने? नौकरी के बहाने जाने किस-किस से दोस्ती कर रखी है। एक साहब बाजू फैला रहे हैं, दूसरे ड्राइंग रूम में खैरियत के बहाने तशरीफ रखे हुए हैं। ये लक्षण है तुम्हारी बहन के। शादी की इसे ज़रूरत ही क्या है, जब 2-2 आशिक मौजूद हों तो।" इस बेहुदा आवाज़ पर सब दंबखुद हुए थे कि अचानक दूसरी आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। ये ज़ोरदार चटाक की आवाज़ इस ज़ोरदार तमाचे की थी, जो शाकिर ने अपनी बीवी के चेहरे पर रसीद किया था। काश वो पहले ऐसी तनबीह करता तो आज उसे बीवी की ज़ुबान पर नदामत ना होती। भाभी, जिनके लिए ये हमला नाकाबिले यकीन और अनोखा था, चेहरे पर हाथ रखे सदमे की शिद्दत से मुंह खोले, आंखें फाड़े शौहर को तक रही थी। अब तख्ते में आने की बारी उनकी थी। नाजिया के कमजोर आसाब इंजेक्शन के बावजूद जवाब दे गए। वो फिर बिस्तर पर लुढ़क गई। वो एक बार फिर बेहोश हो गई। निदा और अहमद हैरत और तासुब से ये सीन देख रहे थे। अहमद ने फराह से कहा, बराए मेहरबानी आप सब कमरा खाली कर दें। मुझे खदशा है इनका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो गया हो। यहाँ मुकम्मल खामोशी चाहिए। फराह लपक कर शाकिर के सामने पहुंची। शाकिर भाई, अगर ये मर गई तो मैं कयामत में आपका गिरबान पकड़ूंगी। इसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगी। कहकर वो वापस नाजिया के पास आ गई। निदा शाकिर और भाभी के साथ बाहर निकल गई। मारिया और फरा वहीं रहीं और अहमद की हिदायत पर अमल करती रहीं। दवाओं के बैग से मुख्तलिफ दवाएं निकालकर अहमद के हाथ में देती रहीं। उस कमरे का शोर शराबा कुछ न कुछ ड्राइंग रूम में बैठे एमडी अजहर तक भी पहुंचा था और वो घबराकर खड़े हो गए। निदा ने उनको सब कुछ बता दिया और उस कहानी में उनका नाम भी शामिल हो गया। वो जो मारिया की जुबानी नाजिया का हाल सुनकर हमदर्दी में आ गए थे खैरियत पूछने, अपनी जगह शर्मिंदा खड़े थे। उस जाहिल औरत को क्या कहते। खाला जान को सफाई देने लगे। अरे बेटा, खाला जान ने उन्हें तसल्ली दी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शाकिर मियाँ ने ही इंसाफ से काम न लिया। औरत की इज्जत हुर्मत का शरीयत में हुक्म है, मगर माँ बहन बीवी के दर्जे जुदा जुदा हैं। सबके साथ मोहब्बत सलूक और इंसाफ की ताकीद है। अब वो शाकिर की तरफ मुतवज्जो हुई, जो अजहर से माजरत करने अंदर आया था। ये कोई मोहब्बत नहीं कि बीवी के सामने सर झुकाओ और बहन के साथ ज्यादती करो। कभी तो बीवी के अल्फाज की तहकीक करते, बहन से पूछते, तुमने तो उसे तन्हा कर दिया। मैं उसकी मासूमियत और पाकबाज़ी की कसम खा सकती हूँ। तुम सोचो, सबके सामने ये ज़ुबान दराज़ी करके बहुतान तराश सकती है, तो अकेले घर में उसके साथ क्या सलूक करती होगी? गो के औरत पर हाथ उठाना भी कोई शरीफाना हरकत नहीं, मगर मुझे खुशी है कि आज तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम्हारी बहन पर इल्ज़ाम लगाकर उस औरत ने कैसा घटिया काम किया है। खालाजान, मैं शर्मिंदा हूँ। आज से पहले मैंने कभी हाथ नहीं उठाया था। उसकी फ़ुज़ूल बातों पर चुप रहता था कि घर में चिक-चिक ना हो। आज यकीन हो गया कि उसके बहुत से इल्ज़ाम झूठ थे। चलो, शुक्र है, आज तुम्हारा ज़मीर जाग गया। मगर इन लड़कों की भी बेइज़्ज़ती तुम्हारी बीवी ने कर दी। वो निदा का देवर डॉक्टर है और तुम्हारे चचा का होने वाला दामाद, और ये अज़हर नाज़िया के अफ़सर हैं।
عیادت کے لیے آئے اور تمہاری بیوی کی زہر بھری نفرت کا نشانہ بن گئے۔ توبہ! لو جی، یہاں تو سارے ہمدرد جمع ہیں۔ بھابھی بھلا باز آنے والی تھیں، تیز آواز میں بولی۔ انہیں اب نیا نکتہ سوجھ گیا تھا۔ چلو شاکر، ہم نے سوچا تھا اپنے کزن سے بہن کی شادی کر کے اسے گھر داماد رکھ لیں گے۔ شاکر کو مدد ملے گی، بہن بھی گھر میں آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ اس کا بھلا چاہا تو یہ انعام ملا کہ برائی میرے سر لگ گئی۔ اچھا انصاف۔ چلو شاکر، پکڑو بہن کا بازو، گھر چلیں۔ کب تک غیروں میں رہے گی؟ باہر سے تایا نے آواز دی۔ شاکر، اگر یہ یہاں سے گئی تو میرے ساتھ میرے گھر جائے گی۔ اب تک میں چپ تھا مگر اب نہیں۔ اب اس کی زندگی کی دعا مانگو، اور جس کزن کی بات کر رہی ہے یہ عورت، وہ کل سے تھانے میں بند ہے، گنڈا ایکٹ کے تحت۔ فجر کے وقت تمہارے سالے کا فون آیا تھا، ضمانت کی لمبی رقم نازیہ کی تنخواہ سے ادا کرنے کا تم کو حکم دیا تھا۔ ایسے بدکار کو پاک باز بہن کا ہاتھ دیتے ہوئے تم کو شرم نہ آئی؟ خدا کا قہر ٹوٹ پڑتا ہے تم پر۔ شاکر، شکر کرو کہ اس غضب سے بچ گئے ہو۔ تھانے جا کر اس نے تمہاری بہن کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، اور تمہیں اس گناہ سے۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا؟ تایا، بس بہت ہو چکی۔ بھابھی کو پھر جوش آیا۔ اب انہیں نازیہ کے ہاتھ اس کی تنخواہیں وصول کرنے کا خیال آیا۔ بیٹھے ہیں افسر صاحب، پیشگی بھی دے دیں تو ہم جائیں۔ ہماری بہن ہے، ہم اس کے ولی وارث ہیں۔ مس نازیہ اب کمپنی کی ملازم نہیں رہیں، وہ کل استعفیٰ دے کر آئی تھی۔ اظہر نے انکشاف کیا، بھابھی کے پتنگے لگ گئے۔ وہ پھر چلانے لگی۔ شاکر نے پھر تھپڑ کے ذریعے ان کی زبان بند کی۔ اب وہ بیوی کی چالاکیوں سے واقف ہو چکا تھا اور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، کہ غیب کے پردے میں بے شمار راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ صابر کو انعام ملے گا، بد دیانت کو سزا۔ بڑے بڑے بااختیار لوگ کبھی نہ کبھی اس طاقت کی پکڑ میں آ جاتے ہیں جس کے سامنے زمین آسمان جھک جاتے ہیں۔ انسان نہیں جانتا وہ کتنی معمولی چیز ہے۔ شاکر کی بیوی کو بڑا غرور تھا کہ وہ شاکر سے ہر کام کروا لیتی ہے، بہت ذہین چالاک ہے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا جب بہن کے کردار پر حملہ شاکر کو ناگوار گزرا اور بیوی کی گستاخ زبان نے اسے اس سے متنفر کر دیا۔ وہ بہن کی صحت یابی کے لیے رک گیا۔ بیوی چلی گئی۔ بھابھی گھر جا کر فون کر کے شاکر کو بلانے اور نازیہ کو ساتھ لانے کی تاکید کرتی رہیں، اور بھابھی کے جانے کے بعد نازیہ حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب فرح کو انگوٹھی پہنانے کے لیے ندا کے شوہر انگلینڈ جرمنی کا دورہ مختصر کر کے واپس آ گئے، تایا نے بیوی کو بھی بلا لیا۔ نازیہ فرح کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی فرح پر فکرے چست کرتی اور احمر کو تنگ کرتی۔ ندا کو مسکراتے دیکھ رہی تھی، سب خوش تھے۔ ماریا بھی موجود تھی، وہ فرح کی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے سامیہ کا ساتھ دے رہی تھی۔ احمر کی مسرت تو اس کی آنکھوں سے چہرے اور حرکت پر ظاہر تھی۔ فرح بھی بے حد مسرور تھی مگر شرمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ تب چند مہمانوں کی آمد پر خالہ جان اٹھ کر باہر گئیں، انہیں اپنے ساتھ لائیں، اور ماریا کے لیے بھی یہ خوشگوار سرپرائز تھا۔ یہ میری جیٹھانی بیگم اختر ہے، یہ ان کا بیٹا اظہر اور بیٹی علیزہ۔ آئیں بھابھی جان، تشریف رکھیں۔ انہوں نے نازیہ کے ساتھ والے صوفے پر اپنی جیٹھانی کو بٹھا دیا۔ نازیہ سر اظہر کو دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ خالہ جان نے تایا کے ساتھ خصوصی طور پر اظہر کو بٹھایا اور شاکر سے مخاطب ہو کر بولی، شاکر میاں، ہم اپنے اظہر میاں کے لیے تمہاری بہن کا رشتہ چاہتے ہیں۔ اجازت ہو تو فرح کے ساتھ نازیہ کو بھی منگنی کی انگوٹھی پہنا دیں۔ شاکر نے تعجب اور مسرت کے ساتھ اجازت دے دی۔ تایا نے اسے سمجھایا تھا کہ گھر آئی عزت کو ہاتھ سے گنوانا جاہلوں کا شیوا ہے۔ شاکر نے آگے بڑھ کر اظہر سے ہاتھ ملایا، وہ جو نازیہ کی کمپنی کے ایم ڈی کی حیثیت میں اس سے ملے تھے۔ انکار کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ مبارک ہو۔ خالہ جان دبنگ آواز میں بولی۔ پھر فرح اور سامیہ نے مسکرا کر نازیہ کو دیکھا، وہ گرنے کو تھی۔ سامیہ، فرح اور احمد تینوں یک زبان چلائے، بے ہوش نہ ہونا، بے ہوش نہ ہونا، بے ہوش نہ ہو جانا، اور سب کے کہہ کہوں نے محفل کو زعفران زار بنا دیا۔ اور سامیہ کو دنیا میں ہیرو بھی نظر آئے، ہیروئن بھی۔ چالاک بدنیت بھابھی
اور ہمدرد ہستی خالہ جان۔ پہلی نظر کی محبت اور بہت بعد میں ہونے والی محبت جیسی اظہر نے نازیہ سے کی، اور یہ بھی علم ہوا کہ سارے مرد چوکیا دوسری شادی نہیں کرتے، مجبوراً بھی کر لیتے ہیں، جیسے کہ شاکر علی نے اپنی بد نیت بیوی سے بیزار ہو کر سامیہ سے کہی، اور سامیہ صرف نازیہ کی محبت میں یہ جوا کھیلنے پر تیار ہوئی۔